of how to grow your venture to a next level. Now, to begin with, the first point that I have in my mind is the structure of the entity, legal aspect. The structure of the entity. Now, popularly, I will not get into all the structures. For me, because your social impact ventures, there are three structures which are very famous. One is limited liability partnership. Second is private limited companies. And third is Section 8 company, because you are impact investment space. Agriculture, you are working at a people at the bottom of pyramid. You are creating some model which helps them grow their lives, everything. Now, I would like to understand from your understanding, in these many names, I am also in a position to read one name, which is OPC Private Limited, one-person company. There are many formats. As per Indian startup norms, there are only three structures which are valid who can get a permission from DPIIT as a startup. That is registered partnership firm, limited liability partnerships, LLP, or private limited company. Now, I want to know from you, which according to you is a good model? LLP, sir. LLP, okay. Private limited. Private limited, okay. Any other? Okay, can you justify LLP or private limited with a strong logic or reason? Sir, LLP because one, it is under DPIT, it is two, the companies are easier and liability is limited to the amount of or the amount that means in the structure. Okay, let me tell you the And pitfall. it is scaled up. Okay, let me tell you the pitfall. Yeah, let me tell you the pitfall. That is negatives. If you don't comply LLP, there is a huge penalty per day, number one. Number two, the biggest pitfall of LLP is not all the VC funds are allowed to invest into LLP. Managing equity stakes in LLP is also difficult. So, Mr. Sukumara, GVC Kumara, you Yes, were sir. saying private limited company? Yeah. Private limited, easy to dilute the equity when the investor comes into the company, because we can part our equity, percentage of equity in the company. Right. Anything And else? of course, the statutory requirements are quite stringent. So either we have to hire the chartered accountants and the secretaries to file all the requirements. That's Right. what. So let me tell you, both the structures, and I strongly understood that, at least you guys are aware about that partnership firm is not an option because it comes with unlimited liability. So that's not an option. Now, point number two,
LLPs can accept unsecured loans and deposits. Private limited companies cannot. But when it comes to raising a fund, private limited companies offer a more suitable structure than LLP. As I've told you, even venture capital firms are allowed to invest into private limited company, but not in LLP. Many a times, LLP structure is good if your growth is going to take care of your expansion and you don't really need an external support. But otherwise, it is imperative to know that LLP structure is good when it comes to compliances. LLP structure is good when it comes to taking unsecured loans. But when it comes to raising the fund, LLP is not so prominent. So at least when you take a decision either to go with LLP or private limited company, you cannot think of from the point of view of the compliances. But that's the job of chartered accountant or company secretary. But you have to think of from the point of view of what is your aim. Sir, can you repeat the point you made on compliances for both LLP and private limited? So for compliances part, LLP has a couple of less number of forms to be filled up on an annual basis. But if you, by any chance, if you can't comply on the due date, then percentage, in terms of private limited companies are limited compared to LLP, which has a every day penalty, 100 rupee, 200 rupee, 500 rupee per day. And many times I have seen LLP guys who have not completed the compliances of last 2 years. And because of that, if you can say the total amount depositable or deviable from the point of view of law is humongous. So that's the compliance point of view. So again, the point is LLP से बेहतर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है अगर एक्सपांशन और उसमें फंड की रिक्वायरमेंट है. अगर एक्सपांशन और फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है तो LLP is a better structure. अगर relatives, known people are willing to invest, park some money, LLP is a better structure. So you need to understand the pluses of both, the minuses of both. You have to also understand your own future potential, your own future plans, and then you'll have to take a call. Which structure is better? But eventually, even if you have a LLP, eventually, when you reach a level where you are going to raise a fund, let's say from venture capitalists or anyone else, one thing is very clear, and that is private limited company is mandatory. Now, this is about a basic company structure. If I really want to create the conglomerate of structures, for example, many of you must be working in impact space, being an agriculture startup. Now the point is, ज्यादा इम्पैक्ट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं से CSR का पैसा भी मिल सकता है. But can you take it in private limited company or LLP? No, you can't.
You have to take some support initiatives and also maybe some financial resources in a separate legal entity, which is Section 8 company, which has got a permission under CSR norms of the Companies Act 2012. सर सेबी से भी ले सकते हैं ना सर? Sorry? लिस्टिंग इन सेबी. सेबी से पैसा नहीं मिल सकता. सेबी सिर्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी है. सेबी पे आप लिस्ट कर सकते हो. जैसे टुडे ओनली नाइका is a very popular brand, right? Cosmetics and other stuff. So Nyka's IPO has started today. So issue got open today. But here SEBI is the regulator. Stock exchanges are the platform where transactions will take place and public will invest money. Now public can be institutional investor as well as a retail investor. Public will invest the money. But SEBI directly doesn't give money. Clear. Now, I was talking about impact investments. Section 8 company who has ATG, 12AA, FCRA, ये सारे लाइसेंसेस भी है, नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस है. और आप जो एरिया में काम कर रहे हो फार्मर्स के ऊपर और फार्मर्स अवेयरनेस के लिए, अगर आपके पास सेक्शन 8 कंपनी भी है जहां पे आप इंडिपेंडेंटली सीएसआर लेके सीएसआर की एक्टिविटी करते हो, तो बिलीव मी गाइस, जो शुरुआत का नया इनोवेशन जो फार्मर्स को समझाने में आपके रिसोर्सेस वेस्ट होते हैं, वो रिसोर्सेस आप सीएसआर के थ्रू अरेंज कर सकते हो. हेलो, एम आई ऑडिबल एंड एम आई क्लियर? मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? Yes, sir. मैं क्या बोल रहा हूँ कि not necessarily that one business means one entity. We had one business in the state of Andhra Pradesh, now Telangana. The business was medical college and hospital in Andhra Pradesh, Jadcherla, Mahbubnagar district. Now, वो पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर चैरिटेबल ट्रस्ट था, प्राइवेट ट्रस्ट था, सेक्शन 25 कंपनी जो अभी सेक्शन 8 हो गई, सेक्शन 8 कंपनी थी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज थी, वेंचर कैपिटल फंड था, हॉस्पिटल चलाने के लिए सेपरेट एनएबीएच का अप्रूवल, कॉलेज चलाने के लिए एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल, पूरा बिजनेस को फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करने के लिए और मैनेज करने के लिए वीसी फंड का इन्वॉल्वमेंट. बट जब ये स्ट्रक्चर कंप्लीटली आया और जब हमने स्ट्रक्चर लोगों के सामने रखा, you won't believe the level of confidence people have put in because you are carefully structuring your startup. One more aspect of structuring is tax planning. इनकम टैक्स एंड जीएसटी दोनों आपको ध्यान रखना है. So this was a bit on structuring part. I have many better pointers to be covered. I hope I have made some points clear to you guys in structuring part. LLP company and LLP or company के साथ you can also have section 8 company. Arm's length has to be created with certain awareness programs, certain skill development kind of basic activities can be supported because it is one time, can be supported from even CSR under section 8 company. Sir, एक क्वेश्चन है, सेक्शन
सेक्शन 8 कंपनी और LLP अगर हम दोनों जिसने का फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई एम सिटिंग एंड वर्किंग ऑन बिल्डिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ अवेयरनेस विथ माय FPO एंड एक्सपोर्टर, मान के चलिए कि अगर मैं सेक्शन 8 रजिस्टर करती हूँ तो वो DP के अंडर तो रजिस्ट्रेशन एज अ स्टार्टअप नहीं माना जाएगा कि हाँ। माना नहीं माना जाएगा, जाएगा। बट तो सेक्शन 8 करने में खर्चा होता है ना, 50-55 हजार का खर्चा होता है। हेलो हेलो, या रुचिका, सर, हेलो, कैन यू हियर मी? कैन यू आई हियर कैन मी? हियर यू, आई कैन हियर यू, या। सर, सेक्शन 8 में खर्चा कितना आए अप्रोक्सीमेटली, और सेक्शन 8 और LLP में खर्चा कितना, में इंडिविजुअल लायबिलिटी क्या रहेगी? ब्रॉडली LLP का खर्चा तो आपको मालूम होगा, एक्चुअल खर्चा 5-7 हजार का, ऊपर का खर्चा प्रोफेशनल फीस का रहता है लोगों का। सेक्शन 8 कंपनी का 20-25 हजार के बीच का एक्चुअल खर्चा और ऊपर और 20-25 हजार का खर्चा होता है। The section 8s are not very easy to make. Lot of tedious activities are there. So कुल मिला के दोनों को आप 60-70 के बीच में LLP और सेक्शन 8 दोनों बना सकते हैं। सेक्शन 8 तभी बनाना है जब हमें क्लियर कट डिस्टिंग्विश्ड रोल बिटवीन टू एंटिटीज मालूम है, जो आर्म्स लेंथ पे काम कर सकते हैं। आर्म्स लेंथ मतलब अगर वो आपके साथ काम नहीं करता और बाहर किसी के साथ काम करता तो भी यही प्राइसिंग में करता, कोई फेवरिज्म नहीं है, क्लैरिटी है, डिस्टिंग्विश मॉडल है। और अगर इस तरह से काम करते हैं तो सेक्शन 8 कंपनी एंड प्राइवेट LLP और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी व्हाटएवर वर्क्स रियली वेल इन द कॉम्बिनेशन। समझ में आया रुचिका? जी सर, थोड़ा समझ में आया। मतलब बाकी if I बाकी के envision लिए of two different entities, या then section 8 makes sense. Otherwise, LLP is enough. if you are not willing to raise money in short duration, LLP is sufficient. Okay. If you are willing And to raise personal money, liability? personal liability is limited in both private limited company, section 8 company and LLP, all three. Okay. Unless you commit a scam like Satyam and all, then law goes इतना दिमाग behind. नहीं है सर. No, I'm just saying. No, I'm not expecting you to do it. You guys are really working on the bottom of pyramid where scams you are obviously not expected. But I'm just telling broadly. Ki liability of LLP, liability of private limited company, liability of section 8 company are limited. Liabilities are limited. अगर आपने intentionally कुछ गलत किया है तो law goes behind the limited liability thought process and they make a compulsion and they make sure that there are disciplinary actions taken against the director of the company or the owner of the company. But otherwise liabilities are limited in both section 8 as well. So it's very carefully you have to draft. Crown debts, Sorry? crown debts, that is the liability to the government in terms of GST or income tax. Yes. The liability is not limited, no, It is limited to the company. to you. See why it is known as limited liability partnership. The name itself suggests the liability is limited. Why it is private limited company? Because the liability is limited. The very word limited in both the sense states very clearly that liabilities are limited. No, I mean, if the company owes GST for some amount, for reasons, for various reasons, company doesn't pay,
Right. And if the action is taken, Hmm. then the directors are held responsible for the liability. Yes, So it is not limited, no? it is limited. It is limited to the tune that directors are supposed to pay. अगर transaction directors ने किया है, तो वहां तक का limited है. Penalties उसके ऊपर नहीं लगती है. Directors के ऊपर, if you go and if you check the law, then directors are liable only for, see, two things. कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी यहां तक है कि जितना आपने इक्विटी किया है, अगर फिर कंपनी के अंदर से डायरेक्टर्स, एक चीज बहुत क्लियर है, इग्नोरेंस ऑफ अ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज अकॉर्डिंग टू द लॉ. फिर आप बोलो कि आपने गलती कर दी और आपने इग्नोर कर दिया और आपने लॉ प्रॉपरली नहीं देखा और या किसी से नहीं पूछा और फिर आपने कंप्लेन नहीं किया, तो आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को भी दिक्कत आ सकती है. That's why government wants to make, for example, let me tell you, आप एक्सपर्ट हो आपकी फील्ड के, दो यंग बच्चे हैं आईआईटी के, वो आते हैं आपके पास और आपको बोलते हैं कि सर आप हमारे साथ डायरेक्टर बन जाओ. आप बोलते हो कि हाँ चलो मैं डायरेक्टर बन जाता हूँ. राइट. गुड फेथ में, उनको सपोर्ट करने के फेथ में, उनको मेंटरिंग करने के फेथ में, आपका नाम होने से उनको अगर फायदा मिल सकता है तो आप नाम देने के लिए भी तैयार हो गए. अभी वो लड़कों ने टाइमली कंप्लायंस नहीं किया, और बहुत बड़ी पेनल्टी आ गई. Whether that penalty will be on you? No. The penalty will be on the surface. The penalty will be on the person who is executing the work. Number one. जो आप execute करते हो, तब अगर आप बोलते हो कि I was ignored about this thing, then ignorance of law is not an excuse. Then you will have to pay a penalty. But उस time पे, let's say I am an executive partner and you are an advisor partner, you're still an executive director of the company and everything. But still, if the liabilities are passed on from a company to a director, then it will be to an executive director, the person who is executing the work. So this is how. So liabilities are limited, no doubt about it. To the tune, आपका जितना shares है, आपका जितना contribution है, उतना ही रहेगा. बट उसके बियॉन्ड अगर आप बोलते हो कि मुझे लॉ मालूम नहीं और आपने कुछ गलती कर दी, तो इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिसफुल ओवर हियर. इन जनरल पैरेलल्स वी से ignorance is a bliss. In this, ignorance is not bliss. And let me also tell you one important statement. If you feel that compliance is a cost, try not complying. And if you don't comply, then what is the cost? You don't know even. That's why compliance is must. Though it seems cost, it is must. So when we form a LLP, like for me, I'll be forming it, for example, with my sister, and when I do that, her portion will be more for me to, if in future I need to give somebody sweat equity, then I'll take it out from there and pass it on. And in case I need to form a advisory board with certain amount of equity portion, like 1%, 2%, then also I'll use certain portion of her share. So while she actively, I'll be the one running it, in order to execute the formation, and because she'll be part of it. Hello. Ruchika. Yes, sir. Some of the points that you have covered so far are going to be covered in my next topics today only. And certain things are very much specific to your particular situation, for which we can get connected offline, so that
for rest of the people, I Yes, can sir. cover Yes. the whole topic also, Sure, and sir. maybe I can ask you few more questions which may be little bit more relevant, particularly to your case, may not be important for Sure. others. Yeah, Sure, sir. Sure. or Thank you, we sir. get corrected for sure, Ruchika. Yeah, Thank you, sir. Thank you. sure. So yes, अब important part. Next point. The next point is founders agreement. How many of you have executed founders agreement? How many of you are more than one founder? Co-founders of the company? Yes, we are two. We are also 2 people, 3 people. How many of you are in 3 people? Somnath has also raised hand. How many so of we you? also are 3 people. Okay. How many of you have executed a founders agreement? No. We See, don't they- know, sir. Even See, we, got not, actually, we haven't done that. Let me ask you very clearly. Anyone has done it? Probably no one. no. I don't know. We have not done. See guys, this is one another issue. चलो मैं आपको इसके pointers बताता हूँ और आपको Yeah, just a question. Like we have made this partnership deed. So in this partnership deed, we have mentioned some like points in that, like if some issue arises and what will happen, and what will be the result of this outcome. I second it. If you have created partnership deed, then standard terms of arbitration issues are there. How will you tackle? All those things are there. But Yes. my question is, in founders agreement, what do we write? We write the role of each and every founder. Number 1. Number 2, let's say, Somnath, you and me are co-founders. Then I want to bring another co-founder in the company. How will I bring? मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं आपका शेयर दे दूंगा, आपका और मेरा अभी 50-50 है. मैं बोलता हूँ मुझे इतना सब काम नहीं करना है. I bring, let's say, Ruchika as a partner, and I give my 25% to Ruchika. Your 50% remains with you. But But if we you don't say- have any, if we don't have any plans to bring any third person, so there's no need of doing this, right? See, nahi, let me tell you, Somnath, one thing. Why agreements are made? Agreements are not made for the understanding of today. Agreements are made for understanding for future also. Let's say मुझे निकलना है, किसी को लाना नहीं है, मुझे निकलना है, कैसे निकलूंगा मैं? आके सोमनाथ को बोल दिया मैं निकल रहा हूँ, ऐसे मैं निकल जाऊंगा? Yeah. नहीं कर सकता. So what we need to do? Yeah, Sukumara? No, in fact, there is a case called OEN Relay, Okay. where the equity was held by a husband and wife. Right. And then they divorced. No, wife wanted to sell the equity to a foreign company, and in the absence of the agreement where the right of selling or the first preference to the co-founder was not there, so she has the right to sell to anyone. Like you said, has the agreement would have been there where Exactly. the founder has to offer, first option should be given to the To another founder. co-founder. Yeah. Then legally she was bound to offer the equity to her husband. There was a if. Yeah. But And it went to the Sukumara court. Sukumara sir, दुनिया का कोई भी एग्रीमेंट हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं चलता. बिजनेस को साइड पे भी रख दोगे तो. So let's talk about just a normal business partnership. हस्बैंड वाइफ आता है ना, तब ये सारे एग्रीमेंट लिखे हुए होते हैं तो भी कुछ नहीं चलता. Right, that's a different part. On a lighter note, I'm saying. Yeah. But yes, what you are saying is right. Makes sense. Not only that, bringing third person, bringing investor, one wants to bring in, another doesn't want to bring in. हर एक जगह का जो important decision making है, sale of stake, bringing new partner, moving out of the business, winding up decision making,
हाउ डू वी वाइंड अप? लेट्स से गॉड फॉरबिड ये सिचुएशन आई, एग्रीमेंट क्यों करते हैं हम? इंश्योरेंस प्रीमियम क्यों भरते हैं? LIC क्यों भरते हैं? ये हम सोच के तो नहीं चल रहे हैं ना, गाड़ी तो ये सोच के नहीं चला रहा कि हमारी गाड़ी एक्सीडेंट होगी, बट गॉड फॉरबिड एक्सीडेंट हो गया Sir. तो क्या करेंगे? सर आई हैव अ क्वेश्चन। या सर सो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर 2-3 बंदे मिलके जब कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो एक चीज तो जरूर होना चाहिए कि तीनों में एक ट्रस्ट और एक फैक्टर होता है, करेक्ट? तभी तीनों साथ आते हैं यहाँ पर। बिल्कुल तो मेरा ये पॉइंट है कि अगर हम लोग हर एक चीज हर एक डिसीजन मेकिंग में अगर हम लोग डॉक्यूमेंट को रेफर करना पड़े, तब ये फिर तो एक सही गॉड फॉरबिड प्रवीण, मैरी Praveen, मेकिंग let's, मेरी मेकिंग I नहीं है। understand. I understand. God forbid the fourth person as an investor gets into the company. He starts playing with the mind of a person. Trust है, कल किसने देखा है? Out of 3, 1 person is not in a position to come to office due to health for 3 months, 4 months. Someone else has been brought in. I don't discount. See, पहली चीज मैं बता रहा हूँ, एक gut feeling होता है, एक बंदे को मिलके लगता है कि यस ही इज माई काइंड और शी इज माई काइंड, और फिर हम उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं। ट्रस्ट डेफिनेटली होना चाहिए, बट ये सारा ट्रस्ट होते हुए भी हमने पार्टनर्स के बीच में झगड़ा होते हुए देखा है, लोगों में फाउंडर्स के बीच में इश्यू होता है। एवरीथिंग इज वेरी पॉजिटिव एंड आई वांट दैट एवरीवन शुड हैव अ पॉजिटिव आउटकम ओनली, बट जब देयर इज अ मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर आपने 3 साल 4 साल भी निकाले बिजनेस में तो आपको मालूम चलेगा कितने पॉइंट्स होंगे जहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे। कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए अगर एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट अगर पहले दिन एग्री कर लेते हैं, जब एवरीथिंग इज गुडी गुडी, व्हेन आई एंड प्रवीण, लेट्स से यू एंड मी आर इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग अ न्यू स्टार्टअप, वी आर ऑलवेज वेरी पैशनेट, वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वेरी पॉजिटिव अबाउट द स्टार्टअप। ये टाइम पे अगर सारे टर्म्स क्लियर कट स्पेसिफाई हो जाते हैं तो सब लोग उसको साइन करते हैं, बट जब जेन्युइनली आपके और मेरे बीच में अगर कोई पॉइंट ऐसा आया कि जहां पे कंफ्लिक्ट क्रिएट हो रही है, तो कंफ्लिक्ट ना हो इसलिए डॉक्यूमेंट होना चाहिए। MOU. काइंड ऑफ एन MOU, काइंड ऑफ एन एग्रीमेंट, अंडरस्टैंडिंग है ये, ठीक है, नॉट टू शू ईच अदर ओवर हियर। द पर्पस इज, जब भी कोई डिसीजन मेकिंग की बात आती है, हु इज गोइंग टू ड्राइव? आज मेरी बात करता हूँ, आई हैव गॉट वन टेक्नोलॉजी कंपनी, आई एम नॉट अ टेक्नोक्रेट। कल रात की बात करता हूँ, 3 पार्टनर है हम लोग, एक सॉफ्टवेयर साइड देखता है, एक हार्डवेयर साइड देखता है, और मैं हूँ कॉमर्शियल साइड देखता हूँ। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में इंटीग्रेशन का इश्यू आ रहा था, हमारे सामने बात आई, मेरे सामने बात आई, ऑब्वियसली 2 पार्टनर के बीच में कोई छोटा मोटा इंटीग्रेशन का इश्यू, दोनों सीनियर लोग हैं, ग्लोबल पर्सनालिटी है अपने आप में, इंटीग्रेशन की बात आई, इश्यू आया। मैंने क्या किया? फाउंडर एग्रीमेंट किया था, उठाया, ये रोल किसका है? तो इनका है। मेरे को नाउ आई डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग, आप आपका रोल अदा करो, टाइमलाइन बताओ, काम आगे बढ़ाते हैं। लेट्स नॉट गेट इनटू द डिस्कशन आल्सो। एंड yesterday evening I'm telling you honestly, around 9:30 I was on a call for that and I could make the things very clear. सॉफ्टवेयर वाला बोल रहा है कि हार्डवेयर के कॉन्फ़िग मैच नहीं कर रहे, इसलिए सॉफ्टवेयर में इश्यू आ रहा है। हार्डवेयर वाला बोल रहा है कि हार्डवेयर तो स्टैंडर्डाइज ही होता है, सॉफ्टवेयर वाले ने वो कॉन्फ़िगरेशन के लिए सॉफ्टवेयर में टेक नहीं डाला है। नाउ बोथ आर पॉइंटिंग एट ईच अदर कि तुमने गलत हार्डवेयर ले लिया, ये बोलता है तुमने गलत सॉफ्टवेयर बनाया। सीनियर बंदे, बट फिर भी एक पॉइंट आ जाता है जहां पे दे वांट टू प्रूव कि वी हैव डन अ सुपीरियर जॉब देयर अदर। तो क्या करें? The solution is very simple, written on the piece of paper. अगर ये नहीं लिखा होता तो क्या मैं इसको सॉल्व कर पाता? शायद नहीं। अगर ये नहीं लिखा होता तो आज शायद हम लोग ये सोचते कि इन दोनों के बीच में कोई कंफर्ट नहीं है, ठीक है, इसको आगे नहीं ले जाना है। हाँ, अभी 3 साल निकाले, 2 साल निकाले टेक्नोलॉजी बनाने, हम लोगों के मिला के 1.5 से 2 करोड़ रुपए घुस गए अंदर, उसको जाने नहीं दे सकते। बट सब लोग No, I think that
Yeah, Yeah, that makes sense, sir. I'm sorry, एक मेरा एक follow up question है on the same point. Sure, please जब ask. शुरू में हम लोग जब शुरू में फाउंडर्स एग्रीमेंट बनाते हैं और जबकि बिजनेस काफी नेसेंट स्टेज में रहता है एंड बहुत सारी चीजें मुझे पता नहीं होती हैं, तो मे बी what I can do is to have things at a very high level. But then how do we go and make sure that we cover the details to an extent which really helps me on the ground in the real life scenario? I mean, उसका कैसे किया जाना चाहिए? So Praveen, number one, there are standard formats of founders agreement which are created. First of all, have a look at them. You get it online. Have a look at them. Number two, आपके बिजनेस का पूरा बिजनेस प्रोसेस सोचो कि कहां से स्टार्ट करके कैसे पहुंचोगे. हर एक स्टेज के अंदर आने वाली डिफिकल्टीज सोचो और उसको लिखना शुरू करो. एंड देन उसमें बाइफिकेशन करो कि ऐसी सिचुएशन गॉड फॉरबिड आती है तो प्रवीण विल टेक केयर. गॉड फॉरबिड ऐसी सिचुएशन आती है तो संकेत विल टेक केयर, लेट्स से, राइट. गॉड फॉरबिड ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो समवन एल्स विल टेक केयर. तो क्या होता है, एक क्लैरिटी आती है. और उसके बियॉन्ड अगर क्लैरिटी नहीं है तीनों के बीच में, तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर इन तीन में से कोई भी चीज नहीं आई तो चौथी चीज करने के लिए प्रवीण जी का थोड़ा म्यूट कर दीजिए ना, सुनाई नहीं दे रहा है. वो ऑन பண்ண लिया. Kumara ji, hello, kindly mute your mic. Thank you. Maybe Sudarshan better that way. Yeah. So Praveen, basically what I was trying to say is कि अगर हमने रोल्स लिखे उसके अलावा कुछ होता है, हमने 10 चीजें लिखी है बट 11वीं चीज आ गई हमारे ध्यान में नहीं है, तो वो चीज को भी टैकल करने का तरीका क्या है वो भी आप फाउंडर एग्रीमेंट में लिखते हो कि वेदर ब्रॉडली इट फॉल्स अंडर मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप, फाइनेंस, प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजी, किसके अंदर फॉल होती है. एंड देन वो डिपार्टमेंट किसका है और वो बंदे को बोलते हैं कि नाउ यू टेक अ डिसीजन. फॉर एग्जांपल, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन योर थॉट प्रोसेस एंड माय थॉट प्रोसेस, बट यू आर एग्रो एक्सपर्ट, आई एम नॉट. सो एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई डिसीजन मेकिंग लेने की बात आती है, मैं क्या बोलूंगा फाइनली कि देख भाई, जैसा कि एग्रीमेंट में लिखा है, क्लैरिटी है कि अब तू जो करेगा आई एम विथ यू. लेट प्रवीण टेक अ होल एंड सोल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ आइदर मेकिंग और ब्रेकिंग दिस बिजनेस, आई एम विथ यू. सो दैट बिकम्स अ गाइडिंग डॉक्यूमेंट. कंपनी बनाते हैं तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल क्या होता है, कंपनी को चलाने का गाइडिंग डॉक्यूमेंट. एलएलपी बनाते हैं तो एलएलपी एग्रीमेंट क्या होता है, एलएलपी को चलाने का गाइडिंग डॉक्यूमेंट. तो अगर हम बिजनेस बनाने के टाइम पे जैसे ही गवर्नमेंट ने बोला और ये मैंडेट हो गया तो हम साइन करने से नहीं इतराते हैं, तो यही चीज अगर हम इंटरनली मैंडेट बना देते हैं तो फाउंडर्स के बीच में होने वाले पोटेंशियल प्रॉब्लम को हम फ्रंट एंड पे पहले से ही, जब एवरीथिंग इज वेरी गुडी रोजी रोजी एंड पॉजिटिव, वी सॉल्व द प्रॉब्लम. एंड व्हेन वी सॉल्व द प्रॉब्लम, बिलीव मी, outcomes are very, very positive. And at least we avoid future conflicts day one. That's the purpose of founder agreement. Not to distrust. Sign तीनों लोग कर रहे हैं अगर 3 फाउंडर है तो. ऐसा नहीं है कि किसी एक के ऊपर डाउट है और दूसरे के ऊपर नहीं है. सबको अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी है और क्लैरिटी के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना है. That's the very purpose of founders agreement. Sir, just I want to ask one thing. If Sure. suppose new one is going to join Yeah. as a member or director, whatever, तो Yeah. पहले क्या उससे एग्रीमेंट लेके उसको एंट्री देना है अपने स्पेस में, अपने Yes. ग्रुप में? So what happens is again, डॉक्टर एहसान, आपके यहाँ पे भी 3 लोग हैं, मान लो 3 लोगों ने पहले से ऑलरेडी फाउंडर एग्रीमेंट बना दिया है. अब आप 3 लोगों को लग रहा है कि चौथे की रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले तो आपको लगा कि 3 के साथ चौथा बंदा, लेट्स से मैं हूं, कि मेरी रिक्वायरमेंट है. तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि मेरी रिक्वायरमेंट क्यों है, क्या हम 3 लोग सफिशिएंट नहीं है, तो कि नहीं, तो अब चौथे की रिक्वायरमेंट है. तो क्यों चौथे की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये चीजें हम 3 में से कोई नहीं कर सकता, अब संकेत को करना है ये सब. तो आपने जो फाउंडर्स एग्रीमेंट बनाया है वो एग्रीमेंट के अंदर
मेरे इन्वॉल्वमेंट के साथ का जो अरेंजमेंट आप कर रहे हो उसको फाउंडर्स एग्रीमेंट का अडेंडम बना सकते हो आप, अडेंडम टू फाउंडर्स एग्रीमेंट. सो द फर्स्ट फाउंडर्स एग्रीमेंट इज शेयर्ड विथ मी कि हम लोगों ने ये प्लान किया है. उसके साथ साथ अब मेरे साथ शेयर करते हो कि संकेत आज के बाद तुम्हारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, तुम्हें ये करना है. नाउ इसके अंदर आप परसेंटेज की बात आती है कि लेट्स से अभी 3 लोग मिलके 1/3 हो ईच. नाउ अब 1/4 होने वाला है हम लोग. तो मुझे 25% कैसे मिलेगा, क्या परफॉर्म करना पड़ेगा? तो एक परफॉर्मेंस इंडेक्स रहता है और एक कमिटमेंट इंडेक्स रहता है. परफॉर्मेंस इंडेक्स जहां पे मेरा रोल है कि संकेत फाइनेंस लाना है, लीगल स्ट्रक्चर क्लियर करना है, कंप्लायंसेस ऑन रोड करना है, वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी बढ़ानी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स करनी है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, इतना अगले 1 साल में करना है. अगर इतना कर लिया तो यू विल बी गिवन 15% फॉर दिस एक्टिविटी दैट यू आर गोइंग टू डू एंड 10% वी विल गिव यू because you are now committed to stay with us for long term. Kind of. It can be 5, 20 also, it can be 20 and 5 also, whatever. But आप इस तरह से मेरे साथ नेगोशिएट करोगे और फिर मैं आगे के फाउंडर्स एग्रीमेंट के टर्म्स जो है वो भी एग्री करूंगा और अडेंडम जो है वो अडेंडम के अंदर मेरा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा इक्विटी, मेरा कंट्रीब्यूशन और मैंने अगर काम नहीं किया तो क्या होना चाहिए ये सब लिख के मैं अडेंडम ऐड कर दूंगा. This is a very robust and very clear mechanism. See, Praveen, you asked one question which is very alarming in a way कि ट्रस्ट के ऊपर बेस चालू होता है. मैं आपको completely, I was फाउंडर इंस्टीट्यूट करके जो है सिलिकॉन वैली से स्टार्ट हुआ है, उसका मैं डायरेक्टर था. तो एडीओ रसी फाउंडर इंस्टीट्यूट का ग्लोबल CEO है, एलन मस्क का पार्टनर है. I was on a call with him and I said, Sanket, why do you need to trust anyone? You are not marrying. You are just entering into a business. You like the skills of that person. He likes your skills. You both have decided to reach somewhere together and that's where you are joining hands. You are not marrying, you are just joining hands. And he says that so many startups do come to Y Combinator. Why founders are fighting very limited compared to people in India? He said, we don't talk about trust. We talk about clarity. We talk about understanding. We talk about a way forward. We talk about the absolute transparency. We talk about the systems. And if you have all these things in place, there is no point of doubting each other. There is no point of just going on the trust factor. And that also helps. So I don't discourage. Our Indian values are also core to my heart. We want to trust the person, but let's say if I don't trust, can't I do a business with that person? I can still do with the systems in place, because the way you are going to share your journey with the founders, you are also going to share a journey with your customers. जो आज आया, आपको चाहिए कि ये बंदा लाइफ टाइम तक आपके पास आए, तो एक उसके साथ भी एक रिलेशन बनता है. इन्वेस्टर वो भी लंबे टाइम तक रहे, उसके साथ भी रिलेशन बनता है. राइट. ये सब लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना पॉसिबल नहीं है, बट ये सब लोगों के साथ सिस्टम बना के, ट्रांसपेरेंसी के साथ, क्लैरिटी के साथ बिजनेस करना पॉसिबल है. तो लेट्स टॉक बिजनेस, लेट्स मीन बिजनेस, एंड बिलीव मी दैट विल बी द रियल बेस. वरना ट्रस्ट के ऊपर तो बहुत सारे ट्रस्ट ब्रीच करने वाले, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होते ही है, इश्यूज भी होते हैं. So sir, ये are these legally enforceable also? अगर मान के चलिए हमने बनाया agreement और agreement को हम absolutely legally enforceable. Let me tell you the extent of law. आपने और मैंने without notary, without stamp paper, एक पेज के ऊपर, ठीक है, कुछ लिख के नीचे साइन कर लिया, तो भी वो legally enforceable है. But the only difficulty and only point why we go for notary and why we go for stamp paper, the reason is
documents get registered with a stamp paper, and in front of notary we sign. So tomorrow morning, neither you tell me that I have forged the signatures, nor I tell you that you have forged the signatures. So to bring, see, मैं वही बोल रहा हूँ, ये सारी चीज हम वैसे भी करते ही है पहले दिन से, और law doesn't believe in trust, law believes in clarity and writing. So let's do that, and everything is legally enforceable. That is confirmed. So you can get the founders agreement notarized, you can take the stamp paper on that, you can register the document, and then this is legally enforceable in a court of law. And मैं एक दूसरी चीज बता दूं, अगर लूजली छोड़ोगे तो किसी को ट्रस्ट ब्रीच करने का सोच भी आएगा दिमाग में. अगर लूजली कुछ नहीं छोड़ोगे तो आइदर माय वे और नो वे आ जाएगा. उसको जो सोचा है, जो किया है, जो प्लान किया है, जो लिखा है, वही करना पड़ेगा. चेंज करने का भी एक मोडालिटी होता है जो फाउंडर एग्रीमेंट में लिखा होता है. Let's say I have assumed all the responsibilities, but I am unable to discharge it. What will happen? या मैं बोलता हूँ कि मेरे से ज्यादा प्रवीण अच्छा कर सकते हैं. प्रवीण is also willing to take, and I am also willing to take, willing to give. How do I transfer my responsibility? Every damn thing is clearly mentioned in founders agreement, and that is needed. So I hope I have made some points clear with respect to founders agreement. Yes, sir. Any question? एक चीज बात करनी सर. सर देखिए, प्रोफेशनल लाइफ में ट्रस्ट की कोई जरूरत ही नहीं है. हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर सामने वाला अगेंस्ट जाता है तो उसके ऊपर पेनाल्टी भी तो पहले डिसाइड कर देनी चाहिए कि अगर ये ट्रस्ट तोड़ेगा तो उसका कितना पैसा इसको देना पड़ेगा. जैसे सपोज, जैसे ज्यादातर जहां अब जो नौकरी लोग करते हैं, तो नौकरी क्योंकि लोग बहुत फ्लो ऑफ, मतलब एक छोड़ा दूसरी पकड़ी ऐसे कर रहे हैं, तो पहले ही एक लिखा लेते हैं कि अगर आप नौकरी छोड़ेंगे सेमेस्टर के बीच में तो आपको 3 महीने की तनख्वाह देनी पड़ेगी बाय फोर्स. तो इस तरीके का क्या हम पहले ही बाउंडेशन नहीं करेंगे कि देखिए ट्रस्ट तो मुझे जरूरत नहीं, कंपनी को ट्रस्ट की क्या जरूरत है, हमें इमोशन से नहीं, हमको पैसे से मतलब है ना. तो वो अगर ट्रस्ट, वो बाहर जाना चाहता है, ये वो काम नहीं करना चाहता, तो उसका पहले ही उस क्या पेपर में लिख दिया जाएगा कितना पैसा पे करना है. एग्जैक्टली, फॉर्मेलिटी क्लियर होनी चाहिए. जरूरी नहीं किसी पे करना है. वो बोल सकता है कि मैं 6 महीने बाद निकलूंगा. ही इज एन इंडिविजुअल, ही इज इंडिपेंडेंट सिटीजन ऑफ द कंट्री. He has a right to leave the business. He has a right to conduct the business. You have a right to deny. You have a right to allow him. ये एक being a citizen, we are given a right by the Constitution of India. But what I am trying to say is, at least अगर हम ये decision पे आते हैं that two partners are planning to split, let there be the clarity of the modalities. कि minimum 3 महीने पहले मुझे बोलना पड़ेगा डॉक्टर एहसान को कि मैं छोड़ना चाहता हूँ. 3 महीने तक मुझे सिस्टमेटिक हैंडओवर करना पड़ेगा. हो सकता है 3 नहीं 6 महीना हो, क्योंकि मैं फाउंडर हूं, मैं एम्प्लॉय नहीं हूं कि 3 महीना चलेगा. मेरा सब पॉइंट है एलुमनी, मुझको जैसे कोई भी स्प्लिट करने पे, रिलेशन स्प्लिट करने पे एलुमनी पे करनी पड़ती है, वैसे अगर कोई फाउंडर आ गया और वो जाना चाहता है तो उसको एक एलुमनी या एक अमाउंट तो पे करना ही पड़ेगा. सर हमें ट्रस्ट की क्या करना है, ट्रस्ट लेके क्या करेंगे सर, हमको तो पैसे चाहिए. अगर दोनों लोग एग्री करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉ मना नहीं करेगा. बट लॉ इज नॉट एनफोर्सेबल ऑन कि एल्यूमिनी एक बहुत ही अलग चीज है, बॉन्ड तोड़ना एक अलग चीज है. बॉन्ड तोड़ते हैं तो 3 महीने का आपको पैसा देना पड़ता है. अगर 3 महीने का नोटिस देके आप सिस्टमेटिकली निकलते हो तो आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है. इवन कंपनी के अंदर अगर आप एम्प्लॉई हो, बीइंग एन एम्प्लॉई, इफ आई हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, और वहां पे मैंने लिखा है सामने वाले ने कि 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना है, अगर आप वो नोटिस पीरियड सर्व नहीं करोगे तो आपको 3 महीने का सैलरी देके जाना है, बिकॉज देन दे आर एट अ लॉस. तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि मैं हर बार जॉब छोड़ने के टाइम पे मुझे पैसा देके जाना है. एल्यूमिनी देने का जो पर्पज है वो एब्सोल्युटली डिफरेंट है. वो है एक मैरिज के अंदर एक रिलेशनशिप बनता है जहां पे एक बंदा दूसरे बंदे के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत हद तक रिलाई करता है. और अगर लाइफ के अंदर बीच में एक टाइम पे वो छोड़ने की बात आती है तो उस बंदे के सर्वाइवल पे क्वेश्चन आ जाता है, बंदा या बंदी. तब एल्यूमिनी का एक प्रोविजन आया है. बिजनेस के अंदर एल्यूमिनी कैन नॉट बी देयर. कल अगर आपको कोई सिचुएशन की वजह से छोड़ना पड़ा
You don't want to, but you have to. What will you do? 3 महीने 6 महीने डिफाइन करो, इतना टाइम आप सर्व करो, निकलो. तो एल्यूमिनी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पे क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है. सर या संजय सर, इवन बॉन्ड को भी तो कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है. मैं बता रहा हूँ, मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था टाटा स्टील जमशेदपुर से. वहां पर तो वहां पर उनका फंडा क्या था कि अगर आप 3 साल के पहले अगर आप छोड़ते हो तो कंपनी को उस समय आज से 25 साल पहले 3 लाख रुपया पे करने के लिए बोल रहा था. उन्होंने बहुत सारे लोगों ने छोड़ा एंड कंपनी कोर्ट के पास गई. मुझे नहीं लगता है कंपनी को कुछ हाथ लगा वहां पर, बिकॉज कंपनी सेड कि इट इज वेरी अनफेयर कि आप 3 लाख रुपया अगर मांगते हो किसी को 3 साल के लिए. तो मैं बोलना चाहता हूँ कि इस तरह के बॉन्ड्स को भी चैलेंज किया जा सकता है लीगल सिस्टम में, राइट? 100% किया जा सकता है, लोग करते ही है. लोग, हेलो, am I audible? जी सर. जी सर, We can hear you. Sorry. Yeah, हाँ, so बॉन्ड को डेफिनेटली चैलेंज किया जा सकता है, राइट. बट इसके सामने क्या होता है, बॉन्ड का लीगल वैलिडिटी भी है, ठीक है. लेट्स नॉट गेट देयर टू डिटेल. बट अगर आज मैं 1 साल प्रवीण को पूरा डिटेल्ड समझाने के लिए, ट्रेनिंग के लिए उसके ऊपर खर्चा करता हूँ, उसको मैं फॉर एग्जांपल अहमदाबाद में अपॉइंट करता हूँ, बट टाटा नगर जमशेदपुर के अंदर ट्रेनिंग के लिए भेजता हूँ, उनको मैं 1 साल का सैलरी लर्निंग के लिए देता हूँ. टाटा जो शायद वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ बैठा है, वो ट्रेनिंग अगर आपको 1 साल के लिए मिलती है और ट्रेनिंग लेके आप दूसरे दिन सुबह उठ के निकल जाते हो, तो you company is investing on you 2 ways. One, paying you salary. At this juncture, you are not in a position to support the company at all because you are still in learning mode. And company आपके ऊपर resources भी spend करता है. टाटा नगर में रहने का, खाने का, वहां के ऊपर जो टेक्नोलॉजी का, मशीनरी का और उसके कंज्यूमेबल्स का सारा खर्चा भी आपके ऊपर करते हैं. ट्रेनर्स को भी रखते हैं और ट्रेनर्स भी आपको आके सिखाते हैं. तो फिर अगर आप सिर्फ सीख के दूसरे दिन निकल जाते हो तो कंपनीज भी कई बार पॉजिटिवली पैसा लेके निकली है. तो इट इज देन अ जजमेंट ऑफ अ लॉ कि कौन सी सिचुएशन में आप निकल रहे हो, किस तरह का एग्रीमेंट किया है, कितने टाइम से आपने सर्व किया है, क्या सर्व किया है, ये सब देखने के बाद कोर्ट डिसीजन लेता है. बट इट कैन बी चैलेंज, नो डाउट अबाउट इट, राइट? Sure. So I hope I have made some points clear and I think you guys have got a lot of questions in this. But अभी ये शुरुआत है, मेरे पास और 3-4 पॉइंट है जिसके ऊपर तो आज 5 बजे भी हमारा काम खत्म नहीं होगा. इतना इम्पोर्टेंट है कि फाउंडर्स के बीच में तो well said. नहीं, But we are all highly emotional people and it is very difficult to implement when emotions comes into the picture. नहीं, it's not bad to be emotional. Make it a part of the system. Then it's not emotional. आज इन्वेस्टर आएगा, आप इमोशनल बनोगे, वो बोलेगा 15-20% ज्यादा दे दो, आप दोगे? कहाँ गए आपके इमोशंस? ऐसा नहीं होगा. मैंने हर एक बंदे को देखा है, जब इन्वेस्टर को पैसा देने की बात आती है, नेगोशिएशन नहीं भी आता तो भी नेगोशिएशन करने बैठ जाते, नेगोशिएशन करते भी है हार्डकोर. फिर इन्वेस्टर बोलता है कि हर महीने MIS देना पड़ेगा आपको, तो आप इन्वेस्टर को ये बोलते हो कि आर यू डाउटिंग अवर कैपेबिलिटीज? नो, वी स्टिल गिव MIS टू इन्वेस्टर मंथ ऑन मंथ बेसिस कि हमने ये महीने में क्या किया क्या नहीं. क्यों? क्योंकि वो एक पैटर्न है. इन्वेस्टर आएगा, MIS मांगेगा और हम MIS देंगे. तो सर, इमोशंस की मैं कदर करता हूँ और इमोशन होने भी चाहिए क्योंकि इमोशन से लाइफ भी है, इमोशन से पैशन भी है. बट जो चीज सिस्टम बन सकती है उसको इमोशन से क्यों इग्नोर करें? सिस्टम बना दो, इट विल बी हेल्पफुल. डिफिकल्ट हो सकता है बट वैसे भी आप जो धंधा कर रहे हो उससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा. आपको आपके कस्टमर्स को कन्वर्ट करने में जो मेहनत लगेगी ना उससे कम होगा, इनोवेशन करने में जो मेहनत लगेगी ना उससे कम होगा. ये सब बहुत ही सिस्टमेटिक स्टैंडर्ड प्रोसेसेस है और वो करने के लिए अगर आपने डिफाइन कर लिया तो नो वन विल बी एबल टू से नो. गारंटी. ट्राई करो, होगा. चलो, ये तो अभी भी अंदर की बात है. अब आई बाहर की बात. और बाहर की 2 बातें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
एक इन्वेस्टर्स एग्रीमेंट, लेट्स टॉक इन्वेस्टर्स एग्रीमेंट फर्स्ट। इन्वेस्टर हमारे पास आता है, एक तो अगर एंजल इन्वेस्टर है, रिनाउंड नहीं है, तो उसके पास भी आधा अधूरा ज्ञान है। फिर वो आता है और आके बोलता है मुझे टैग अलोंग चाहिए, ड्रैग अलोंग चाहिए, लिक्विडेशन प्रेफरेंस चाहिए, मुझे बोर्ड सीट चाहिए, मुझे MIS चाहिए, मेरा ऑडिटर रहेगा, मैं बोलूं उसके साथ टेक्नोलॉजी बनवानी है, बहुत कुछ बदलने की ट्राई करेगा। He will interfere। और बहुत ज्यादा फाउंडर्स का डर ये भी रहता है कि अगर वो इंटरफियर करेगा ना तो काम करने में मजा नहीं आएगा, इसलिए हम पैसे ही नहीं लेते। आई एम श्योर एवरीवन विल एग्री कि अगर कोई बंदा आपको कंस्ट्रक्टिव सजेशन देता है तो यू विल से यस, और अगर वो इंटरफियर करता है तो यू डोंट वांट दैट पर्सन। या एनी क्वेश्चन अजय? यू आर अनम्यूटेड। सो अब ये सिचुएशन को कैसे संभालें? Certain points are going to remain the common. It's a very Ajay, are you asking any question? Ajay Kumar? Okay. Are you asking any question, Ajay? Ajay, do you have a question? If not, then please mute. I will mute him, sir. Sir, I have one question. अगर सर इन्वेस्टर्स इस तरीके से फोकअप कर रहे हैं और तो बेटर व्हाई वी शुड नॉट गो फॉर लोन? अगर कोई देता है तो ले लो। लोन में तो सर ये तो सिर्फ एक लायबिलिटी इंटरेस्ट की रहती है ना। लोन देने की सबसे बड़ी बात होती है ना साहब। आज आप लोन के लिए जाओगे, बैंक को क्या चाहिए? स्टार्टअप हुआ, 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए। 3 साल ही नहीं हुए, और 3 साल हो भी गए तो ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? पहले 2 साल तुमने प्रोडक्ट बनाने में निकाल दिया, बिजनेस किया ही नहीं अभी। दूसरा, उनको चाहिए कि आपके पास कोई असेट हो जिसको आप सिक्योरिटी के तौर पे दे सको, घर या फैक्ट्री, मॉर्गेज के लिए, सिक्योरिटी के लिए। वो भी नहीं है। और आपको पैसा चाहिए ट्रायल करने के लिए, R&D करने के लिए, और इसके लिए बैंक पैसा नहीं देता। बैंक के सर्टेन रूल्स है, नॉर्म्स है। तो सर इन्वेस्टर्स क्यों पैसा देता है? उसको क्या बेनिफिट आ जाएगा बाद में, और क्यों भरोसा करे हमारे ऊपर? इन्वेस्टर आपके ऊपर नहीं, आपके बिजनेस के ऊपर करता है, और आपके ऊपर डेफिनेटली करता है। इन्वेस्टर आपके बिजनेस के ऊपर करता है, आपका बिजनेस का पार्टनर बनता है वो पैसा देके। आपके बिजनेस में अभी आपने लेट्स से 1 करोड़ रुपए आपको चाहिए, और वो इन्वेस्टर को लग रहा है कि अगर मैं डॉक्टर एहसान को 1 करोड़ रुपए दूंगा तो ये डॉक्टर एहसान जो एक्टिविटी कर रहा है उससे मुझे 1 करोड़ का 10 करोड़ मिलेगा। तो कोई बात बनेगी जब 1 करोड़ का 10 करोड़ बनेगा तब। अच्छा सर, ये भी चलिए। अब जैसे लोन के केस में क्या हुआ कि अगर बाय डिफॉल्ट नहीं आया तो वो मॉर्गेज के जो भी है वो सब जब्त कर लेगा। अगर कंपनी बैठ गई तो इन्वेस्टर्स का कैसे पैसा निकालेगा? नहीं निकालेगा, वो रिस्क ले रहा है। आप भी नहीं निकाल पाओगे, वो भी नहीं निकाल पाएगा। कंपनी बैठ गई तो उसके पैसा भी बैठ गया। प्रैक्टिकली स्पीकिंग 100 रुपए में से 10 रुपए ही होते हैं जिसमें से पैसा कमाता है। 10 में से एक ही स्टार्टअप होता है जिसमें वो पैसा कमाता है। 6-7 स्टार्टअप में तो उसके पैसे 0 हो जाते हैं, और 2-3 स्टार्टअप होते हैं जिसके अंदर वो 10 का 15, 10 का 17, 10 का 20 कमाता है। एक ही स्टार्टअप होता है जहां पे 10 का 100 कमाता है। एंड देन कुल मिला के उसने 100 इन्वेस्ट किया है और उसको मिलता है 130, 140। तो 30-40% के रिटर्न के लिए वो काम करता है, और 30-40% का रिटर्न बहुत ही डिसेंट होता है। अगर आप इन्वेस्ट करते हो
शेयर मार्केट की अभी की पोजीशन भूल जाओ तो शेयर मार्केट विल गिव यू अ रिटर्न ऑफ 20-25%. FD will give you a return of 6%, 7%. Portfolio companies will give you a return of 15%. अगर आप इंटरेस्ट पे भी देते हो तो 18%, 21%, 30-40% का रिटर्न कोई नहीं देता. 30-40% का रिटर्न स्टार्टअप देता है और इसीलिए वो लोग इन्वेस्ट भी करते हैं. Okay. Because every human has a greed of making more money. और पैसे से पैसा बनता है, ये यहाँ पे कहावत सच होती है. अगर आपकी जेब में पैसा है, अगर आप आपके लाइफ में सिक्योर हो और वो पैसा आप थोड़ा रिस्क लगा सकते हो. आप सबको मालूम है कि अगर वही बंदा कैसीनो में जाके पैसा उड़ाएगा, हो सकता है 1 करोड़ का वो 100 करोड़ लेके आ जाए, पर ये भी हो सकता है कि 1 करोड़ का 0 करके वापस आ जाए. बट वो रिस्क ले सकता है तो वो रिस्क लेगा. बट अगर आप ग्रो हो गए तो वो भी ग्रो करेगा, आप नहीं हुए तो वो भी नहीं होगा. सो ये पूरा इक्विटी का गेम है. और इक्विटी इन्वेस्टर्स जब आते हैं तब इन्वेस्टर्स बहुत सारे टर्म्स के साथ आते हैं. नाउ इन्वेस्टर्स आर ऑलवेज कैलिब्रेटेड in either of two ways. One, very friendly, very supportive, very constructive. And second, not so friendly, mean, selfish, greedy, immoral sometimes. And they want to grow everything overnight. They will ask you to compromise on the quality. They will push you to get the maximum sales. क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करो, मार्जिन बढ़ाओ, क्योंकि उसको 5 साल के बाद आपकी कंपनी का होगा उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. उसको फर्क पड़ता है 5 साल में मुझे 1 का 3 मिल गया ना, बस आई एम डन. दैट्स हाउ इट वर्क्स. So, Sanjay sir, I have a question here. क्या प्रवीण? तो संजय सर, एक चीज मुझे जानने का है कि मान के चलिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर हैं. कुछ जो है सो HNIs हैं जो कि प्रोफेशनल बॉडीज नहीं है, या फिर कुछ फॉर्मल इन्वेस्टर्स होते हैं. तो हर एक लोगों का जो तरीका होता है हैंडलिंग का अलग अलग होता है, राइट? अभी अगर आप इन्वेस्टमेंट सीख कर रहे हो कहीं से, तो इट इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल टू गो एंड इवैल्यूएट ऑल दीज एस्पेक्ट्स अगेन बिफोरहैंड, करेक्ट? सो यू आर टेकिंग अ रिस्क दैट ये जो बंदा आ रहा है वो मेरे को अच्छे से ऑपरेट करने देगा, सही तरीके से ऑपरेट करने देगा. हाउ डू यू एंश्योर दैट एस्पेक्ट? आई मीन, आप तो क्योंकि रिसीविंग एंड में हो तो आप बहुत कंडीशन डाल नहीं सकते हो वहां पर, बट देन यू स्टिल वांट टू एंश्योर दैट कि चीजें सही तरीके से आगे बैलेंस तरीके से हो. आप एंश्योर कैसे करेंगे उसको? आई सेकंड योर पॉइंट. सी, एक तो 2-3 चीज होती है प्रवीण. हम जाके मिलते हैं तब हम इंडिपेंडेंटली इवेल्युएट करते हैं. मतलब कोई इन्वेस्टर ने सीधा बोल दिया कि आई एम विलिंग टू गिव यू मनी, डजंट मीन दैट यू हैव टेकन द मनी. आप इवेल्युएट करो, देन इन्वेस्टर को बोलो कि सर आपके लिए टर्म शीट बनती है. सी, इन्वेस्टर्स आते हैं तो 2 डॉक्यूमेंट बनते हैं, टर्म शीट एंड शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट. टर्म शीट जब बनती है तब आप बताओ कि सर आपका रोल क्या रहेगा. डिफाइन करो कि हम क्वार्टरली एक बार मीटिंग करेंगे, ज्यादा नहीं कर पाएंगे. देन सर हमारी एंड से इतना MIS आपको हर महीने मिल जाएगा, बट ज्यादा पूछ मत करना. 3 महीने में बैठेंगे ना, तब तीनों 3 MIS को हम लोग उल्टा पुल्टा करके भी पूरा चेक करके देख लेंगे, बात कर लेंगे. पर हर दूसरे दिन फोन मत करना. देन ही में से कि नहीं मैं भी ये बिजनेस को समझता हूँ, मेरे भी बहुत सारे कनेक्शंस है और मैं भी लोगों को कनेक्ट करूंगा. तो उसका मैकेनिज्म सेट कर दो कि ठीक है सर, आपके पास कोई भी कनेक्शन आता है, आप ये को फाउंडर को पास ऑन कर दो डील. वो को फाउंडर ऐसा होना चाहिए जो को फाउंडर बिल्कुल नॉन कंट्रोवर्शियल हो. जैसे एक बंदा एग्रेसिव होगा
मार्केटिंग का होगा, तो दूसरा बंदा होगा टेक्नोलॉजी का, फॉर एग्जांपल, जो माइल्ड होगा, उसको ये सबसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है ना, उसको इन्वेस्टर के साथ कनेक्ट कर दो, क्योंकि दो एग्रेसिव लोग मिल गए ना तो दिक्कतें शुरू हो जाएगी। तो थोड़े स्ट्रेटेजीज हैं, थोड़े मेथड्स हैं, उसको अप्लाई करोगे तो इन्वेस्टर को मैनेज कर पाएंगे। इन्वेस्टर को मैनेज करना, इट्स एन आर्ट एंड इट्स अ साइंस बोथ। आर्ट बिकॉज you need to be quite spontaneous. It cannot be scientifically or technically proven. But scientific because some set strategies, some set legal arrangements are there. और वो अगर नहीं भी बोलते हैं तो इंकल्टिकेट कर लो आपके डॉक्यूमेंट में कि सर हम 3 महीने में एक बार मिलेंगे, एक शाम आपके नाम, और 3 महीने में एक बार 4 घंटा बैठेंगे, डिटेल में बात करेंगे, 3 महीने क्या किया वो, आगे 4 महीने क्या करने वाले हैं वो, कितना पैसा बनाया, कितना पैसा बनाएंगे, कितना उड़ाया, कितना उड़ाएंगे, कितने लोग हैं टीम में, कितने लोगों को ऐड कर रहे हैं, कौन सी ज्योग्राफीज ऐड कर रहे हैं, कितने एसोसिएट्स ऐड कर रहे हैं, सब कुछ। फिर कंप्लायंसेस हो गए, सर सारी चीजें। एक क्वेश्चन है, एज ए स्टार्टअप या फिर स्टार्टअप वर्ड छोड़ दिए, एज ए कंपनी हमको क्या होमवर्क करके जाना चाहिए वीसी के सामने, इन्वेस्टर्स के सामने कि ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बट मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ। मतलब वो ऐसा होता है ना कि जैसे सर कि ये आपको रेडी कर लेके जाना चाहिए, ये मतलब वो बेसिकली वो समझ गया, क्वेश्चन समझ गया मैं आपको आंसर बताता हूँ। आपको सबसे पहले तो कितना पैसा चाहिए, क्यों चाहिए, ये क्वेश्चन का आंसर आपके पास होना चाहिए। सेकंड, कितना इक्विटी देने के लिए तैयार हो, तो उसके लिए कोई कंसल्टेंट को हायर करना है जो आपको वैल्यूएशन में भी हेल्प करे, क्योंकि 1 करोड़ के सामने 10% देना जरूरी है, 1 करोड़ के सामने 25% देना पड़ेगा, वो आपका वैल्यूएशन से ही मालूम चलेगा। तो कितना टका इक्विटी पार्टनरशिप देनी है वो डिफाइन करना है। नंबर 3, आपका बिजनेस मॉडल जो है उसको क्लियर कट डिटेल में 15-20 पेजों में लिखना है। एक प्रेजेंटेशन बनाना है जो आपके बिजनेस के बारे में इन्वेस्टर को 15 मिनट के अंदर सारी डिटेल दे दे, जिसमें आपको कितना पैसा चाहिए वो भी आ जाए, पैसा कहाँ यूज करोगे वो भी आ जाए, और आगे कैसे बढ़ोगे वो भी आ जाए। फाइनेंशियल्स एंड वैल्यूएशन आई रिक्वेस्ट कोई भी प्रोफेशनल के साथ बनवाना। एंड एक बॉटम लाइन इज, आपके बिजनेस का विजन क्लियर होना चाहिए कि मैं 5 साल में आज यहां हूं, यहां पहुंचूंगा। आप आंख बंद करके वो विजुअलाइज कर सको। आप इतना प्रिसाइज सटीक एक्सप्लेनेशन दो कि आपकी आंखों से आपका इन्वेस्टर भी वो विजुअलाइज करना शुरू कर दे। और जब वो होगा ना, तब इन्वेस्टर का फेथ आपके ऊपर और आपके बिजनेस के ऊपर बढ़ जाएगा। और जब तक ये फेथ नहीं आता तब तक वो कंफर्ट नहीं आता, जब तक वो कंफर्ट नहीं आता तब तक वो पैसा नहीं आता। और फिर लोग बोलते हैं कि फंड रेज करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। मैं बोलता हूँ फंड रेज करना बहुत इजी टास्क है। द ओनली थिंग इज व्हाट यू राइटली आस्क्ड डॉक्टर एहसान, यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। Be prepared, and believe me, investors are actually waiting to see right startups and they want to invest. एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, लोगों का पैसा दिलवाया भी है और खुद दिया भी है। आज भी हमारा खुद का एंजल नेटवर्क भी चालू कर रहे हैं, वीसी फंड भी है और इन्वेस्टर ग्रुप भी बहुत बड़ा है। सो हमें मालूम है क्या होता है, कैसे होता है। सो कमिंग बैक टू द लीगल पॉइंट्स राइट नाउ, इन्वेस्टर्स को मैनेज करने के लिए सर्टेन टर्म्स हैं। या प्रवीण, सॉरी संकेत सर, वन मोर क्वेश्चन, सॉरी। प्लीज ये जो आपने जो कहा कि जी आपने जो कहा कि वैल्यूएशन के लिए किसी प्रोफेशनल से कराना चाहिए, हम लोग जो अभी
जिस पर काम कर रहे हैं, हमारा MVP रेडी है, हम लोग अभी वैल्यूएशन के बारे में सोच रहे हैं, बट हम खुद से करने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम वैल्यू और मनी डाल के, कैश फ्लो बना के, ट्राइंग टू कम अप विद वैल्यूएशन. सो how do you see that? I mean, is it required to go to a professional person to get the valuation done before even you get the first funding? See, एक चीज क्या है मालूम है? It is all about avoiding the conflicts. Let me tell you. इन्वेस्टर बोलेगा कि ये वैल्यूएशन किसने बनाया? आप बोलोगे हमने बनाया. So इन्वेस्टर क्या बोलेगा? आपको कहाँ आता है वैल्यूएशन बनाना? आपने जो किया वो सब गलत है. और आपने वैल्यूएशन निकाला 10 करोड़ रुपए. वो बोलेगा नहीं नहीं 2 करोड़ से ज्यादा वैल्यूएशन नहीं हो सकता, आपने सब कुछ गलत लिखा है. Why will he trust you? तो क्वेश्चन क्या आएगा? वो डील नहीं होगी. टाइम बिगड़ा, एफर्ट्स बिगड़े, नाम बिगड़ा. दूसरे इन्वेस्टर के पास जाओगे, शायद यही सीन होगा. कोई एक आध बंदा हाँ भी बोलेगा तो उसका सीए मना करेगा, क्योंकि हर एक बंदा अपना भी एक सीए लेके बैठा है, वो भी मना करेगा. तो ये चीज से बाहर निकलना है ना, तो एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन क्या है मालूम है? जहां इमोशनल सेंटीज नहीं है, जहां क्लैरिटी के साथ बात करना पॉसिबल है, जहां पे कोई ज्यादा नाम परमानेंटली बिगड़ने का स्कोप नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आप प्रोफेशनल को रखते हो और प्रोफेशनल जाके बोलते हैं कि सर आपका ये टर्म तो देखो कैसा है, मैं कैसे मेरे क्लाइंट को बोलूं कि मान जाए. कैन यू टेल दिस बीइंग अ इन्वेस्टर? नो. कि अगर गलती से उसने इन्वेस्ट कर दिया तो आप दोनों को एक दूसरे को झेलना है. कंसल्टेंट का तो क्या है? इट्स लाइक कंसल्टेंट का जो जॉब होता है ना, वो गौर महाराज हम गुजराती में बोलते हैं, जो शादी करवाता है, वो शादी करवाने वाला होता है. अल्टीमेटली तो फिर मियाँ बीवी को ही एक दूसरे को झेलना होता है, और हम तो बाहर निकल जाते हैं. So it is important, it is imperative that you have someone in the deal who becomes your mouth, who becomes your eyes, who becomes your ears. But still, when it comes to, Vinod, I think your mic is unmute. Yes, sir. Sir, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. हाँ बोलो. सर, समटाइम्स सर इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर इवैल्यूएशन भी वेरी करता है. इन माय केस सर, जी सर, मेरे केस में मैं फंडिंग के लिए अप्रोच कर रहा था जब अपने स्टार्टअप के लिए, तो अहमदाबाद गिफ्ट सिटी आपने सुना होगा, तो वहां से मैं एक इन्वेस्टर के साथ अटैच था. तो उन्होंने मेरा, जब मैं बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में था, थोड़ा सा ट्रांजैक्शन भी हो रहा था, तो मेरे स्टार्टअप का इवैल्यूएशन उन्होंने 1.5 करोड़ लगाया स्टार्टिंग में, और फिर वो एनी हाउ वो डील नहीं बन पाई. और उसके जस्ट 1 महीने बाद हमारा इवैल्यूएशन हुआ IIT कानपुर में सिडबी के थ्रू, और उनका इवैल्यूएशन उससे मान लीजिए आप 6-5 टाइम्स ज्यादा रहा, और इक्विटी भी कम डाइल्यूट लिया और इन्वेस्टमेंट भी आया. तो सर इस इशू को हम कैसे फिर मैनेज करें कि इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर भी वेरी करता है इवैल्यूएशन? Sanket sir, your voice is breaking. Am I audible? Yes sir, now you're on. Yeah, sure. So एहसान साहब को मैंने इसलिए बताया ये कि आप डिफाइन करो कितना रुपया चाहिए, कहाँ यूज करने वाले हो, और उसके बाद तुरंत ही पॉइंट कितना डाइल्यूट करने वाले हो. अगर वो बंदा मेरी रेंज में फिट नहीं होता है तो गो एंड कन्विंस समवन एल्स. सी एक चीज होती है, कई बार इन्वेस्टर का ग्रीड इतना होता है कि वो सामने वाले का वैल्यूएशन अंडर वैल्यू करता है. उसको भी मालूम है कहीं ना कहीं मन में कि ये तो 5 करोड़ की वैल्यूएशन वाला कंपनी है, तो बोलने में क्या देता है, उसको कौन पैसा देने वाला है? हमारे जैसे कितने लोग हैं जो इन पैसा लेके घूम रहे हैं. तो 1.5 करोड़ में मांगो ना, अगर वो दे देगा तो मुझे मिल जाएगी. आपके जैसे स्टार्टअप्स लेके, मतलब नॉट एग्जैक्टली द एक्टिविटी, बट जिसको पैसा चाहिए, ऐसे 100 स्टार्टअप मार्केट में घूमते हैं. उसमें से 10 स्टार्टअप तो ऐसे होंगे ना जिनको पैसा चाहिए बट मिल नहीं रहा है, ट्राई कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है. हो सकता है कि 5 करोड़ 7 करोड़ की वैल्यूएशन वाला बंदा बेचारा अपने आप को ही अंडरमाइन करना शुरू कर दे और 1.5 करोड़ में अपने आप को बेच के आ जाए, तो इन्वेस्टर को तो फायदा ही है. तो ये इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर नहीं, प्रोफेशनल को बीच में ले आओ
professional to professional, from time to time, from every meeting to different meeting, a valuation can be different. So valuation is such a gimmick. A loss-making company can also become a unicorn. Without revenue also you can become a unicorn. The way best example in front of all of us, जब Facebook bought WhatsApp for $19 billion valuation, जबकि WhatsApp को हम में से किसी ने ₹1 भी नहीं दिया था, ₹60 भी नहीं दिया था. उस टाइम पे था कुछ ₹60, $1 per annum. मैंने तो पे नहीं किया था. I'm not sure about all. With very minuscule revenue, V valuation was $19 billion. So valuation is a very skewed game. I'm not getting into valuation right now, because if I get into it, I take 7 sessions on just fundraising and valuations, investor management. क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दरिया है. एक पॉइंट को मैं डाइसेक्ट करता हूँ वहां पे, और मैं बताता हूँ कि इन्वेस्टर के माइंडसेट्स क्या रहते हैं, और अगर वहां से उस तरह से हम ऑपरेट करना शुरू करते हैं, तब इन्वेस्टर्स रियल टर्म में आपके पार्टनर बन के बिजनेस करेंगे. सो एक ये हो गया. बट एक इन्वेस्टर की अलग टाइप होती है, और वो है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर, जो आपको बिजनेस भी लाके देंगे, जो आपको शायद अपनी जगह भी देंगे, जो आपको थोड़े मैन पावर भी देंगे, जो आपको शायद टेक्नोलॉजी भी देंगे. तो जो बंदा पैसे के साथ ये सब दे रहा है, उसको हम कैसे इक्विटी दे? जो पैसा दे रहा है वो तो वैल्यूएशन से लिंक कर दिया हमने कि मेरा 10 करोड़ का वैल्यूएशन है, आप 1 करोड़ रुपए दे रहे हो, मैं आपको 9.5%, 10% दे दूंगा. खत्म. बट हाउ विल यू एंश्योर कि वो बंदा सिर्फ 1 करोड़ रुपए नहीं दे रहा है, बट वो आपको एंश्योर कर रहा है कि मैं बिजनेस इतना दूंगा, मैं मैन पावर इतना दूंगा, मैं जगह इतनी दूंगी जिसके ऊपर जो आपका रेंटल लगने वाला था वो भी नहीं लगेगा. तो उसको भी कुछ एडिशनल, इतना सपोर्ट कर रहा है तो उसको भी कुछ तो एडिशनल चाहिए होगा ना. वो क्या, कैसे डिफाइन करोगे आप? समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया मेरा? I hope I'm not boring you guys. It is very interesting offer, but it is difficult to assess how much to dilute. Exactly. Because you are getting infrastructure, you are getting manpower, you are getting, all the requirements. Yes. And which is very necessary to scale up. No, but I think. Hello, Sasa. Yes, boliye sir. This is Dr. PC Pandey. Actually, Yes, I sir. have some questions. I have established a company, Sensor Tech OPC Private Limited. Okay, and we are developing various kinds of sensors which are not available in India. If you allow, I can show you the share my screen, and the product also, it is online available. The website is already available and it is on Trade India. Okay, so we are doing now all these products. It is not being manufactured in India. Whatever product we have actually commercialized, and it is already available in commercial form. All the data are available online, that its quality and everything. So now what I have found, and I'm working on designing a solid state sensor, which is still not available even at the global scenario. So we have made some innovation on solid state PS sensor, for which I am just one of the innovator of that, and I am here and participating on this program. So that part we will work, and that part also we will define that one. Like whatever product we have innovated in India, it is not available anywhere, especially in this context. Yes. So what I find, this is commercially available, my product, and I found only very few people, they are. I see the call from several.
but I am not able to find, because this product is not getting manufactured in India. So this is really very important for not only for India, even for this continent. If you, if you can discuss, if you have time, I can show the product. We can discuss it offline, sir, on this. But what is your question? Yeah, my question is, I am always spending the money, innovating the product, and we have really maybe 0.1% we have got this, business, and then, how long you can continue this kinds of business, which is really innovative and is not available in India. And the users really, they talk a little bit, they make the queries, and we reply the query, because the Trade India, we are making that business to Trade India. So we have put it on platform. So we spend a lot of money on establishing that online portal also. So these are the problems which we have seen, but Trade India also implies that your product is very good. That's not a problem. So, sir, if I summarize, your problem is to find out the right investor, which kind of person to be partnered with. Yeah. Or, huh? Yes. This is. Okay. Bang on, sir. मेरे लिए बस ये क्वेश्चन काफी है. जी. अगर आप इनोवेटर हो, अगर आपके पास ग्लोबली पेटेंटेड प्रोजेक्ट है, जी. ठीक है. ठीक है. I have done nothing less than 100 such projects जहाँ पे ग्लोबली पेटेंट है. ठीक है. 50-60 कंट्री, 80 कंट्री में पेटेंट है. ठीक है. अभी ऐसे प्रोजेक्ट को कैसे आगे ले जाया जाए? तो एक तो सबसे पहले सर बहुत ही क्रूड बात ये होती है कि ऐसी चीज क्रिएट करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको स्पेशल असेंबली लाइन की शायद रिक्वायरमेंट हो सकती है. आपको ऐसी भी जगह चाहिए जो शायद सेक्रेट हो. आई एग्री. राइट. तो अभी ऐसे कोई मैन्युफैक्चरर है जो ये कर सकता है, उसके साथ आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करवाओ. यस. उससे बेहतर है अब उसको पार्टनर भी बनाओ. I am interested to do that. I want to talk on that. Yes. No. क्यों? क्योंकि अगर वो बंदा आपका पार्टनर है तो your trade secrets of the patented product will remain with you, with the company, and where he is also partner. Number one. Number two, you also need to understand that the commercial world works quite differently than the innovation world. And there is a gap in between. So you need to find some corporate or someone who has worked on such commercialization of innovation product. For example, I can tell you one company which is General Electrics. GE have done fantastic job of commercializing that high-end globally patented technologies. Right. Now, you have a lot of Indian companies also who have done it. In defense segment, in electronics segment, in food segment, in pharma segment, for that sake. You need to have someone who has got a solid commercial mindset. I agree. Yes. Now, sir, strategy would be the person who is a commercial mindset and the person who is a manufacturing mindset and you being an innovative mindset has to club together. क्योंकि कॉमर्शियल बंदे को बेचना आता है, आपको आफ्टर सेल सर्विस और इनोवेशन दिखाई देता है, इम्पैक्ट दिखाई देता है, मुझे ये दिखाई पड़ता है. हाँ, और मैन्युफैक्चरर को आज उसकी बैच एक बैच चल रही है तो उसको 3 बैच चलानी है. Unfortunately, I am the manufacturer making 80-90% effort on manufacturing also the material. That is another problem. नहीं, so that is okay ना. तो रिमेनिंग 10% के लिए बंदे को लेके आओ तो उसके लिए उसका परसेंटेज शेयर भी कम हो जाएगा. Yeah. So what I try to say is that you need to bring in the right match of people. You need to find out the right bandwidth of people. Okay. पहले पार्टनर्स ऐसे बनाओ को-फाउंडर्स के तौर पे कि कोई एक मैन्युफैक्चरिंग साइड, इनोवेशन साइड, सेल्स साइड और मे बी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ द बिजनेस देखता है. जब ऐसी टीम बन जाएगी ना, तब आप ग्लोबली पेटेंटेड प्रोजेक्ट को ये टीम के साथ लेके जाओ कोई भी वीसी के सामने. वीसी को कोई डाउट नहीं रहेगा अगर आपकी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है और पेटेंट भी है तो कोई डाउट नहीं है कि आपको कोई पैसा ना दे. बट द ओनली पॉइंट इज पैसा लोग नहीं देते इनोवेटर को. उसका रीजन ये होता है
आई विल बी ब्लंट इनफ सर, बट द रीजन ये होता है कि इनोवेटर्स सिर्फ अपने हाथ में 100% रखना चाहते हैं और वो राइट वैल्यू ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग, राइट वैल्यू ऑफ कमर्शियलाइजेशन इज नॉट कैप्चर्ड इन द बिजनेस. जब ये होता है ना, तब इन्वेस्टर्स आर नेवर विलिंग टू इन्वेस्ट द मनी. और इसीलिए बहुत सारे इनोवेटर्स को मैंने देखा है कि वो लोग दर बदर जाते हैं, अच्छे इनोवेशन लेके जाते हैं, बट इन्वेस्टर्स को वो इनका इम्प्रेस नहीं कर पाते. क्योंकि इन्वेस्टर्स को अल्टीमेटली क्या चाहिए कि मैंने 5 लाख डाले, मुझे 20 लाख मिलेगा. अगर हाँ, तो ये सब जमेला काम का है. अगर ना, तो आपका ग्लोबली पेटेंट क्या यूनिवर्सली पेटेंटेड क्यों ना हो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड. दैट्स व्हाट द माइंडसेट ऑफ इन्वेस्टर. You need to understand the mindset of each and every person, bring the different mindsets on top of it, and then if you go and leverage it, believe me, globally patented project with a good margins, because it's a manufacturing product with always going to be a good margin, with a good margins, all the investors are willing to be a part of it. Yeah. Well, what is the problem before me? Actually, I am also here a faculty member. So I have, more than 100% time, which is really I am spending in this kinds of activity. So actually, I am the sole worker, starting from innovation to manufacturing till now. Again, solution will remain the same. Yeah. So, bring the right partner in place. The team is in place. Yeah. Everything will work out. Yeah. Okay. राइट सर, इसके बियॉन्ड का डिस्कशन हम लोग ऑफलाइन लेंगे. बाकी है और आई एम श्योर एवरीवन हैज गॉट अ लॉट ऑफ गुड क्वेश्चंस, राइट? बट टुडे आई एम रियली एंजॉयिंग बिजनेस मॉडल. बिजनेस मॉडल से बेहतर एटलीस्ट लोग आज सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं. A Q&A is always more informative than just monotonous lecturing. So that's good. So coming back to the point on strategic partnership, how will we consider the strategic partnerships stake? So the answer to it is, number one, the value of input being brought in. For example, आपको जगह मिली है, तो जगह अगर वो एरिया में वो जगह मिलती तो नंबर वन, जितने भी आपको इंटेंजिबल बेनिफिट्स दिख रहे हैं, नॉन कैश बेनिफिट्स दिख रहे हैं, उसको क्वांटिफाई करो. स्टेप वन. जैसे मैंने बोला कि आपको ये पर्टिकुलर लोकेशन पे जगह मिलेगी, तो ये पर्टिकुलर लोकेशन में जगह का अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट क्या रहता होगा, रेंटल क्या रहता होगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या रहता होगा, एवरेज प्राइसिंग निकालना शुरू करो. सेकंड, जो आपने एवरेज प्राइसिंग निकाला है, वो सारे एवरेज प्राइसिंग को आपको कहीं ना कहीं क्वांटिफाई करना है कि मैंने 10 करोड़ का वैल्यूएशन बोला आपको कि 10 करोड़ का वैल्यूएशन है, ठीक है. अब वो मुझे जो बेनिफिट दे रहा है जगह का और रेंट का, सबका मिला के मंथली 2 लाख रुपए होता है, मतलब सालाना 25 लाख रुपए होता है. 24 लाख रुपए का रेंट एक्सेट्रा, तो 1 लाख रुपए का टैक्सेस, 25 लाख रुपए होता है. अब मैं लेता हूँ ये 4 साल के लिए, ठीक है, तो मेरा 1 करोड़ रुपए ये हो गया, ठीक है. ये बेनिफिट दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम हिम. सेकंड इज ही इज गिविंग मी द GMV, दैट इज मेरा बिजनेस बढ़ाता है. तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें मिनिमम अगले 4 साल के अंदर 10 करोड़ का बिजनेस दिलवा दूंगा, ठीक है. 10 करोड़ के बिजनेस में आपका मार्जिन कितना है, तो आपका मार्जिन हुआ 2.5 करोड़ फॉर एग्जांपल. तो एडिशनल बेनिफिट टू द कंपनी थ्रू हिम इज 1 करोड़ प्लस 2.5 करोड़, ठीक है. ये हुआ अगले 4 साल के अंदर, ठीक है. प्लस वो बंदा बोलता है कि मैं आपको मैन पावर देता हूँ, ठीक है. मैन पावर का कॉस्ट कितना है, मानो 50 लाख रुपए, ठीक है. 3 और 1 4 करोड़ रुपए उसने टोटल एडिशनल नॉन कैश दिए, ठीक है. आपकी वैल्यूएशन है 10 करोड़ की, ठीक है. 10 करोड़ की वैल्यूएशन में 1 करोड़ कैश दे रहा है और 4 करोड़ का वो वैल्यू दे रहा है, 5 करोड़ रुपए आपको दे रहा है, ठीक है. तो आपको क्या है, आज के दिन की वैल्यू मेरी 10 करोड़ है, आप लेके आ रहे हो 5 करोड़ रुपए, टोटल हुआ 15 करोड़. 15 करोड़ में से 5 करोड़, ठीक है, आपका है. 33% मुझे आपको देना है. अब नाउ 33% ओवर अ पीरियड मुझे देना है आपको, क्योंकि आपका भी कमिटमेंट 4 साल का है, तो मैं आपको 33% 4 साल में दूंगा. अभी और एक चीज ऑलवेज ध्यान रखना, इन्वेस्टर के साथ डील करने में सबसे बड़ी दिक्कत जो एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, और वो क्या है मालूम है, रादर देन प्लेइंग ऑन नंबर ऑफ शेयर्स, यू ऑलवेज प्ले ऑन द नंबर ऑफ परसेंटेज. 5% दे दूंगा, 20% दे दूंगा, क्यों भाई? 10,000 शेयर दूंगा, 20,000 शेयर दूंगा. हम एक चीज बोलो, अब सब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे,
कई लोग तो करते होंगे। आप क्या रिलायंस के पास जाके ये बोलते हो कि मुझे 3% शेयर दे दे, मेरा 10% शेयर दे दे? हम क्या बोलते हैं कि रिलायंस के आज 500 शेयर खरीदे मैंने। तो वही चीज वो आपके बिजनेस में क्यों नहीं हो सकता? सामने वालों को कमिट करो कि 500 शेयर तुम्हारा है। फिर क्या रिलायंस अपने 10 करोड़ शेयर से, फॉर एग्जांपल, या 100 करोड़ शेयर से 100 करोड़ शेयर से 110 करोड़ शेयर करने के लिए एडिशनल 10 करोड़ शेयर इश्यू करता है? क्या आपको पूछने आता है? नहीं। तो आपके पास भी अगर 10 करोड़ रुपए के शेयर है, आपको 10 से 12 करोड़ के करना है शेयर, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं। बस यू आर कमिटिंग इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। जो कैश बेनिफिट देता है उसका परसेंटेज बात करो, नॉन कैश बेनिफिट के सामने नंबर ऑफ शेयर्स डिफाइन करो। मतलब क्या हुआ? आज 33% में 10% परसेंटेज से लिंक है, 23% के इक्विवेलेंट लेट से 23,000 शेयर या 23 लाख शेयर, वो नंबर ऑफ शेयर से लिंक है। मतलब आज वो 23% की वैल्यू 23% है, कल आपने आपके शेयर्स को डबल कर दिया तो वो 11.5% हो जाएगी। 4 गुना कर दिया तो वो 5.5% हो जाएगी। तो परसेंटेज उसके ऑटोमेटिक डाइल्यूट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उनका जो कंट्रोल है बिजनेस पे वो भी कम होता जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत ही क्लियर स्ट्रेटेजी है ये, और लोग मानेगा करेंगे। संगीत सर, इन्वेस्टर इस चीज को मानने के लिए तैयार होंगे क्या? आई मीन उनका तो, उनको भी ये चीज मालूम होगा, राइट? नहीं, हमें क्या बोलना है कि सर आपने जो पैसा दिया उसके सामने परसेंटेज की बात करेंगे। आपने मुझे जो कैश टेंजिबल इंटेंजिबल बेनिफिट दिया, ठीक है, जो नॉन कैश तौर पे आया मेरे साइड पे, उसका आपको मैं जो रुपए का, लेट से आज 1 करोड़ 10 करोड़ के वैल्यूएशन के सामने 1 करोड़ रुपए लेके आ रहा हूँ, तो मेरा शेयर का वैल्यू 1,000 रुपए हुआ, ठीक है। तो मैं आपको, आप बोलो ना, आपने मुझे क्या बोला, 4 करोड़ का वैल्यू दोगे, 4 करोड़ डिवाइडेड बाय 1000, मैं आपको इतने शेयर्स एक्स्ट्रा दे दूंगा। परसेंटेज निकालो ही नहीं डिस्कशन में। इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू डू दैट, उनको तो नंबर ऑफ शेयर ज्यादा मिल रहा है ना। सर मैं आपको बताऊं, अच्छे से अच्छी वीसी फंड भी यही करता है। जब समझ में नहीं आता ना, तब हम लोग भी परसेंटेज की बातें करते हैं। और इन्वेस्टर्स आर ऑलवेज स्मार्ट, अगर आप परसेंटेज में कमिट करते हो तो वो क्यों मना करेगा? मैं क्या बोलता हूँ, 2 करोड़ का कैश दिया, 1 करोड़ का कैश दिया, उसमें परसेंटेज देना पड़ेगा 10%, नॉन डाइल्यूटेबल, अप टू 2 राउंड्स, अप टू 3 राउंड्स, ये सब आएगा। मैं उसमें मना नहीं कर रहा हूं, वो इन्वेस्टर भी कोई घास नहीं खाता है। बट अगर मैं आपको 10 करोड़ के 3 करोड़ का एडिशनल बेनिफिट देता हूं, तो 3 करोड़ का, ये 4 करोड़ का एडिशनल बेनिफिट देता हूं, तो 4 करोड़ के सामने जितने शेयर्स मेरे बनते हैं, जो वैल्यूएशन आज एग्री किया है आपने और मैंने, वो वैल्यूएशन पे मुझे 4 करोड़ के इक्विवेलेंट के शेयर्स दे दो। वो भी ओवर पीरियड देने आपको मुझे, क्योंकि मैंने भी कमिटमेंट ओवर पीरियड किया है। अगले 3-4 साल तक मैं आपको जगह देने वाला हूँ, पहले दिन आप मुझे क्यों दोगे? तो क्या होगा, आपका बर्डन कम हो जाएगा। सो आप डील इस तरह से कर सकते हो। सामने आप कोई भी इन्वेस्टर के सामने ये तो बोल सकते हो ना कि सर आप जो बाकी का दे रहे हो ना, उसका वैल्यू 3 करोड़ का लग रहा है, चलो आप बोलते हो, आप पहले हो 3 का 3.5 करोड़ कर लो। वो बंदा क्या बोलेगा, क्या जिगरा वाला बंदा है, ज्यादा देने के लिए तैयार है, मतलब ये बंदा मान गया। फिर आप बोलोगे सर 3.5 करोड़ के डिवाइडेड बाय 1000 करके मैं आपको इतने शेयर दे दूंगा। अभी शेयर्स कैसे आपको मुझे ट्रांसफर करना है उसका शेड्यूल बना देते हैं, खत्म। और 1 का 10 करोगे तो उसके शेयर का भी वैल्यू 10 टाइम्स होगा ही होगा। बट जो परसेंटेज होल्डिंग है ना, वो परसेंटेज होल्डिंग आपके कंट्रोल में रहेगा। देन परसेंटेज होल्डिंग का कंट्रोल सिर्फ 10% का उनका है, बाकी 90% के साथ कैसे प्ले करना है वो आपके हाथ में। सी गाइस, नहीं बट एक चीज संकेत सर, मैं एक चीज समझने की कोशिश कर रहा था कि या तो आप उसको परसेंटेज के टर्म्स में बोलें या फिर आप उसको नंबर ऑफ शेयर्स के टर्म में बोले, बट नंबर ऑफ शेयर इज आल्सो अ फ्रैक्शन ऑफ द टोटल अवेलेबल शेयर, राइट? राइट। तो उस केस में अल्टीमेटली उस केस में आई मीन does it not amount to the same thing? I mean ultimately what you are offering is same, right? I mean you are not, it does, but प्रवीण जी क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप परसेंटेज में डील करते हो ना,
तब आपने सिडबी के साथ किया, ठीक है, या किसी ने भी, और सिडबी ने बोला कि यार मेरा 33% बनता है, अगले 2 राउंड तक, 2 राउंड्स तक आप मेरा परसेंटेज डाइल्यूट नहीं कर सकते, तो मालूम है आपका कितना ब्लॉक हुआ? आपका ब्लॉक 33% हुआ। मैं क्या बोलता हूँ, 10% ब्लॉक करो, क्योंकि उसमें कैश आ रहा है, आपकी जेब में पैसा आ रहा है। रिमेनिंग 23 इक्विवेलेंट जो है ना, वो आज 23% है, बट उसको ब्लॉक मत करो। उसके सामने उसको बोल लो कि 2,30,000 शेयर्स मैं आपको दे दूंगा, फॉर एग्जाम्पल, दे दो, या 23,000 शेयर दे दूंगा, दे दो। फिर कल सुबह आप आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाओगे तो 23 कैन बिकम 50% ऑफ दिस ऑल्सो, 25% ऑफ दिस ऑल्सो, क्योंकि आपने नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दिए टोटल। बट जब 10% नॉन डाइल्यूटेबल होगा ना, तब आपको एडिशनल शेयर्स इश्यू करने की बात आएगी, उसको राइट देने की बात आएगी। समझ में आ रहा है? थोड़ा no, बहुत I see your point, yeah. या जी सर, जी सर, समझ में आई। या सो जस्ट थिंक ओवर, इसको हम सेपरेटली भी बाद में बात कर सकते हैं। एंड देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रेटजीज ऑन व्हिच यू गाइस कैन वर्क ऑन जेन्युइनली, राइट? तो अभी एक पॉइंट है, इन्वेस्टर हो गया, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर हो गया, सारे पॉइंट्स बता दिए। अब एक पॉइंट है, यंग स्टार्टअप है और वो बोलता है, और उसको मिलते हैं एडवाइजर्स, या सीनियर स्टार्टअप है बट उसको कोई प्रोमिनेंट पर्सन मिलता है एज एन एडवाइजर, एज अ मेंटर। एडवाइजर और मेंटर को परसेंटेज कैसे दे? ये सारे पार्टनरशिप्स की बातें कर रहा हूं लीगल तरीके से। एडवाइजर और मेंटर ऐसे ही आके 2% दे दो, 1.5% दे दो, और हम भी बोलते हैं ठीक है। क्या टर्म्स होने चाहिए? एटलीस्ट मेरा थॉट ये रहता है कि मैं देखता हूँ कि अगर कोई इन्वेस्टर या मेंटर मेरे पास आता है तो मैं कितना उसको कैश देने के फेवर में हूँ, और उसको मैं मेरा जो वैल्यूएशन कैलकुलेशन है उसके हिसाब से मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ। एंड देन अगेन नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, बट मैं परसेंटेज में लेके आता हूँ कि 0.5% दूंगा या 1% दूंगा। सो मैं एक्चुअली बेसिस मेरा नंबर ही रहता है ऑलवेज कैश। I agree, and that's a good strategy. That's a good strategy. The first strategy even I was to tell you was that कि अगर आप कैश दे सकते हो तो कैश दो। अगर आपके हाथ में जेब में पैसा है, अगर आपके रेवेन्यू मैनेज कर सकता है उतना, तो उसको कैश कंपेंसेशन दे दो। फर्स्ट थिंग, ज्यादा ही लगाव है इक्विटी के साथ। इक्विटी अल्टीमेटली कॉमोडिटी ही है जिसको ट्रेड ऑफ करनी है, पैसे बनाना अल्टीमेटली घर के लिए। द बॉटम लाइन इज, जब तक काम कर रहे हो, जब तक ये कंपनी आपकी है, तब तक वो कंपनी में आपके कंट्रोल से होना चाहिए। The biggest reason of becoming an entrepreneur is not always to become a billionaire, but also to become an independent, to enjoy the freedom, to enjoy a freedom of taking a decision and convincing others that your decision is not wrong. That is also one of the kick that you get from entrepreneurship. और अगर ये सारे झमेलों में, पैसा इकट्ठा करने के झमेलों में, ये सब में, मेंटर्स बनाने के झमेलों में, दिखावा करने के झमेलों में, अगर आपने इतने परसेंटेज बाहर दे दिए कि आपको काम करने का मोटिवेशन नहीं रहता, क्योंकि फिर लगता है जब ये सब मीटिंग खत्म होती है तब कि रात को 12 बजे बैठ के तो आप ही काम कर रहे हो, बाकी सब तो घर पे जाके आराम से सो रहे हैं, और तब आपका मोटिवेशन डाउन नहीं होना चाहिए। कंट्रोल नहीं होगा डाउन। लोग कंट्रोल के लिए बोलते हैं, मैं बोलता हूँ कंट्रोल इज सेकेंडरी थिंग, motivation is more important. Work. So guys, when it comes to mentors, I completely second the point of Praveen कि अगर आपके हाथ में पैसा है तो first pay money. Now पैसा नहीं है तो again a similar mechanism. Don't go for percentage. Initially it looks like percentage, but give a commitment in writing for number of shares. You decide
the role of a mentor clearly. You decide the time of a mentor clearly. कि monthly 3 बार या 4 बार 1-1 घंटा आप हमें mentoring के लिए दोगे. Define कि क्या उनका network आपको चाहिए, उनको बताओ कि हमें सर इतना तो लीड लाके दो, आप 4 लीड लाके तो दो, 5 लीड लाके तो दो, 5 लीड में से हम 2 को कवर करेंगे तो भी हमारा काम हो गया. तो लीड लाके दो. ये सब चीज जो हो रही है उसको आप क्वांटिफाई करो. अगेन आई एम टेलिंग यू, और वो क्वांटिफिकेशन के सामने नंबर ऑफ शेयर्स दे दो. अगर वैल्यूएशन आपका क्लियर है, इन्वेस्टमेंट हो चुका है, तो बोलो इन्वेस्टमेंट के सामने कितना डिस्काउंट देके कर रहा है. आज 100 रुपए का वैल्यूएशन है तो आप 80 रुपए के इक्विवेलेंट शेयर्स उनको दे सकते हो. तो स्ट्रेट अवे उनको 25% का बेनिफिट मिल गया, क्योंकि 80 का 25 इज 20, सो 80 के ऊपर 20 इज 25% बेनिफिट मिल गया स्ट्रेट अवे. अगेंस्ट द मेंटरिंग जो शेयर्स मिले उसमें स्ट्रेट अवे 25% का गेन. यू कैन क्रिएट दिस, पॉसिबल है. सर एक चीज और पूछना था. ये ना सर, ये बताइए सर, जैसे ये कोई मेरी, जैसे हम लोग की कंपनी है, ये रनिंग में है और किसी यूनिवर्सिटी से मतलब टाई अप लेके वहां पर अपना एक उसके इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़ना चाहें, तो क्या उसको पैसे देके लेना चाहिए कि उसको शेयर देके लेना चाहिए? कि एक्टिव 2 तरीका होता है. एक, किसी यूनिवर्सिटी में स्टार्टअप बना तो उसके रूल एंड रेगुलेशन अलग है, लेकिन यूनिवर्सिटी या किसी और प्लेस पे या फिर कोई ऑफिस जिसपे हम अपना कंपनी लेके जा रहे हैं, तो उसके साथ कैसे एसोसिएट करेंगे? विद कुछ पैसे देके किराया कि कुछ शेयर देके, ये कैसे कर सकते हैं? सी, in a very early stage of business, startups don't have too much of choice. इंक्यूबेटर के पास जाते हैं तब आपको जो फैसिलिटीज दी जाती है, सपोर्ट, मेंटरिंग दिया जाता है, access to certain capital which can be by way of CSR or maybe by way of government grants are made available. उसके लिeu में some percentages are asked. Now it is you and the CEO and incubation manager of the incubator has to sit across and understand. और वहां पे अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं. इसलिए I had one incubator और हमने ये रखा था कि we used to take 3% equity शुरुआत में, but with a condition कि जैसे ही नेक्स्ट राउंड का पैसा आता है हम प्रायोरिटी देंगे फाउंडर को कि वो एक 3% खरीद ले एट एन अप्रोप्रिएट वैल्यूएशन. मतलब ये 3% बाहर लोगों के लिए नहीं है, आपके लिए है. तो जब तक नहीं, कंपनी को वापस खरीदना पड़ेगा वो 3%. कंपनी को या फाउंडर्स को. कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, फाउंडर्स आर अ सेपरेट लीगल एंटिटी. आइदर फाउंडर्स और कंपनी कैन बाय बैक. तो इतना शेयर्स मार्केट में नहीं गया, आपके हाथ में ही रहा. सिर्फ ये पर्टिकुलर प्रोसेस में एक बेनिफिट मिल गया इंक्यूबेटर को कि जब स्टार्ट किया था तब 15 रुपए का शेयर होगा, एग्जिट किया होगा तब 1500 रुपए का शेयर होगा. और ये बेनिफिट के लिए कर सकता है. बट दिस इज एब्सोल्युटली अगेन बेस्ड ऑन द बेनिफिट्स आर अवेलेबल, उसके ऊपर होगा. मुझे मेंटरिंग मिलता है तो कैसा मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है तो कैसा मिलता है, मुझे फर्नीचर मुझे प्लांट एंड मशीनरी चाहिए तो मिलता है कि नहीं मिलता है, राइट. मुझे R&D सपोर्ट चाहिए तो मिलता है कि नहीं मिलता है. इनोवेशन क्वेश्चन क्या है, मुझे इंटर्न्स चाहिए, मुझे मिलता है कि नहीं मिलता है. इंस्टीट्यूट, एकेडमिक इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ. ये सबको ध्यान में रख के आप परसेंटेज दे सकते हो, बट विद अ कंडीशन, राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल, दैट इज पहले खरीदना है कि नहीं खरीदना है, उसका डिसीजन मेकिंग ओरिजिनल फाउंडर्स के पास हो. दैट इज पॉसिबल और लॉट ऑफ इंक्यूबेटर्स एग्री ऑन दिस.
Hope I made the point clear. एकदम सर समझ में आ गया। Great. So coming back to mentors understanding, ये सब हुआ। अभी एक पॉइंट है, शायद I may stretch it up 2-3 minutes more, not more than that. फाउंडर्स को देने का प्लान कर लिया, इन्वेस्टर्स को देने का प्लान कर लिया, स्ट्रेटेजिक पार्टनर को देने का प्लान कर लिया, एडवाइजर मेंटर को देने का प्लान कर लिया। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर कंपनी के रहते हैं और उनको देना है तो कैसे दे, और वो है एम्प्लॉइज, जो आपके साथ आपकी जर्नी में पहले दिन से आपके साथ है। आपके पास जब पैसा नहीं था तब आपने उनको पैसा नहीं दिया, आपके पास पैसा है तब आपने पैसा दिया, आपके टेंशन में उन्होंने भी टेंशन लिया, आपकी खुशी में उन्होंने भी खुशी ली, और आपकी जर्नी में आपके साथ विदाउट बिकमिंग अ को-फाउंडर हाथ में हाथ डाल के चले। ऐसे एम्प्लॉइज को हम सिर्फ सैलरी या इंसेंटिव से मैनेज नहीं कर सकते, हमें उनको कहीं ना कहीं स्वेट इक्विटी, अब टिपिकल ट्रेडिशनल एम्प्लॉइज को स्टॉक ऑप्शंस कैसे दे, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, दैट्स नॉट इवन माय जॉब, वो कोई भी आपको सिखा देगा। मेरे पास एक अच्छी बेहतर मेथड है जिससे आप ज्यादा शेयर्स दे सकते हो, ज्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट गेन कर सकते हो, उनको एक अपनेपन की फीलिंग दे सकते हो, बिलोंगिंग फील करवा सकते हो, फिर भी आपका कंट्रोल, आपका बिजनेस डिसीजन मेकिंग विल नॉट बी हैम्पर्ड। ज्यादा देके भी हैम्पर नहीं होगा, ऐसा मैं बोल रहा हूं। The reason in the method is issue them a separate class of stocks. जैसे कि रूटीन में इन्वेस्टर आए हैं, फाउंडर्स ने जो लिए हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर ने लिए हैं, वो टाइप ए शेयर्स है, तो टाइप बी शेयर्स इश्यू करो। शेयर की वैल्यू इक्विवेलेंट रखो, बट विथ अ डीवीआर। डीवीआर इज डिफरेंशियल वोटिंग राइट, मतलब 100 शेयर पे एक ही वोट मिलेगा, जबकि वहां पे एक शेयर पे एक वोट मिलता है। डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि एम्प्लॉइज को हमें कंट्रोल नहीं देना है, हमें एम्प्लॉइज को सिर्फ बेनिफिट देना है। द पर्पस इज वेरी क्लियर, वी डोंट वांट एम्प्लॉइज टू कंट्रोल, वी वांट एम्प्लॉइज टू गेन। तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले टाइप बी शेयर्स एम्प्लॉइज को दे दो। एम्प्लॉइज को डिजर्व करते हैं 1 लाख रुपए के शेयर, गिव देम 1,25,000 के शेयर, but issue them a shares with DVR, differential voting right. बेनिफिट वही का वही है, डिविडेंड वैसा ही जाएगा, सबको मिलेगा, बट डिसीजन मेकिंग नहीं लेगा। और ये करने से बहुत सारे एम्प्लॉइज लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ रहेंगे, और ये बहुत ही जरूरी है। ऑल द स्टेक होल्डर्स should remain with you forever. कस्टमर एक बार आपके पास आया, दूसरी कोई जगह पे नहीं जाना चाहिए, सिर्फ आप ही का होना चाहिए। इन्वेस्टर 4 साल के बाद एग्जिट लेने से मना करे कि नो आई विल कंटिन्यू। एम्प्लॉइज आपको कभी छोड़ते ना जाए, फाउंडर्स कभी छोड़ते ना जाए, और जब ऐसा बनाओगे तब रॉबस्ट, सिस्टम ड्रिवन, क्वालिटी ड्रिवन अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टअप एंड बिजनेस आप बना पाओगे। सो थैंक यू सो मच। विद दिस पॉइंट आई एम डन विथ माय सम ऑफ द लीगल एंड पार्टनरशिप एस्पेक्ट्स। आई होप कुछ आपको
जानने को मिला हो, नया एंगल मिला हो। मैं ट्रेडिशनल तरीके से कुछ बताने के लिए नहीं बैठा हूं, क्योंकि वो बताने वाले बहुत सारे वीडियोस ऑनलाइन अवेलेबल है। मैंने जो बताया वो हार्ड कोर रियल स्ट्रेटेजीज है जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो और इससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। लेट मी ऑल्सो टेल यू, इसमें से कोई भी स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं है जो मैंने इम्प्लाई नहीं की है, एक नहीं मल्टीपल स्टार्टअप में, और सक्सेसफुली एग्जीक्यूट की है। यू विल ऑल्सो बी एबल टू डू इट। थैंक यू। Thank you so much, sir. I mean, you Thank you, deserve a sir. round of applause for taking such a critical thing, being such a big constraint, और इतने कम समय में आपने इतने critical चीज को इतने अच्छे से explain किया. As you could see, like there are endless questions. I think still we will have, if I say, people, you have any question, you will get 10 more questions, I guess. But keeping time as the constraint. So thank you once again, sir. One last question can we take, sir? Someone was raising hand, I guess. Ruchika ji, did you raise your hand? नहीं, I was putting up the applause symbol. Okay. But सर के साथ एक सेशन और चाहिए हम लोगों को। Definitely. सिर्फ क्वेश्चन आंसर के सेशन चाहिए सिर्फ। Definitely, हम लोग एक सेशन बियॉन्ड दिस AOP हम लोग शेड्यूल जरूर कर सकते हैं सर के अवेलेबिलिटी के हिसाब से, and then we can take a session. I hope, sir, you're good with that. Yes, I am absolutely fine. And once again, if you all can, thanks जिन्होंने start किया video. Now this has reminded me. Yeah, please, everyone of you. See all of you. Let me interact with all of you. Right. I hope everyone has liked, and we'll definitely try to be in touch with you all. Right. Sir has already traveled the journey you guys have traveled. So he knows every nooks and corners of the startup journey. Everyone, please switch on your video. We will take a quick screenshot. Yes, that would be great. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, everyone, for being a patient listener. Thank you. Right. इतना मुझे जेल पाना बहुत डिफिकल्ट है वैसे। मैं बहुत ज्यादा अलग एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे काफी जल्दी चला जाता हूँ मैं। नहीं सर, we doubt that. आपको झेल पाना बहुत, झेल क्या पाना, आपको सुनना ही बहुत बड़ा एक it's a lot of fun and a lot of excitement basically. सर हमें झेलने का एक मौका और दीजिए. We really need to hear more. So kindly give us another session on the same topic. Would love to. We'll define a time. We'll define once, right? और मैंने एक्चुअली ये भी सोनल जी को बोला है कि ये पूरा जो प्रोसेस है बहुत टेक्निकली साउंड बना सकते हैं। मैंने बोला था कि ये पूरे कोहोर्ट को एक बार कोहोर्ट खत्म होता है, I can take a 7-day or at least 5 days a session back to back, जब मैं पूरा का पूरा जर्नी लीगल फाइनेंशियल एस्पेक्ट से इन्वेस्टर को अप्रोच करने से इन्वेस्टर मैनेजमेंट तक, उसको एग्जिट देने तक मैं कवर करूं। कि मैंने डिफाइन किया कि मुझे पैसा चाहिए तो क्या डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है, इन्वेस्टर के पास कैसे जाना है, इन्वेस्टर को कैसे कन्विंस करना है, कैसे डॉक्यूमेंट बना के इन्वेस्टर को अपनी कंपनी में लाना है, देन इन्वेस्टर को कैसे मैनेज करना है जब तक एग्जिट नहीं मिलता है, एग्जिट फॉर्मेलिटी कैसे करनी है और उनको सक्सेसफुल एग्जिट देना है, और वो एग्जिट सक्सेसफुल देने के बाद वो एग्जिट को कैसे लिवरेज करना है। क्योंकि इन्वेस्टर को तो उसका पैसा मिल गया, कंपनी को भी तो उसका बेनिफिट तो मिलना चाहिए, इन्वेस्टर को एग्जिट दिया उसका, तो उसका भी एक लिवरेजिंग पॉइंट होता है, और यू गाइस कैन लिवरेज दैट। और अगर ये 2 बार कर लिया स्टार्टअप जर्नी में तो आपका आईपीओ कंफर्म। जोमेटो, नाइका, उसके बाद आप लोगों का आईपीओ टाइम में हो जाएगा। पेटीएम इज आल्सो कमिंग। सो नाउअडेज गाइस एक चीज बता रहा हूँ, 25 साल पहले का यूएसए, आज की टॉप 10 यूएसए की कंपनीज देखो, एक भी कंपनी का बर्थ नहीं हुआ था, और अभी ये सारी 25 साल में ये सारी कंपनी टॉप नॉच पे है। अभी इंडिया की यही सिचुएशन है। अब जो कंपनियां बर्थ लेगी अगले 20 साल में वो टॉप 10 में होगी इंडिया की, उसमें ना रिलायंस होगा ना टाटा होगा। लिख के ले लो, स्टार्टअप्स आर गोइंग टू रूल द वर्ल्ड। एप्पल हैज रूल्ड इट, गूगल हैज डन इट, फेसबुक, ट्विटर, एवरीवन इज डूइंग इट। टॉप 10 में जी नहीं मिलेगा, टॉप 10 में कई बार माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं मिलता है, बट फेसबुक को कोई निकाल नहीं सकता है, एप्पल को कोई निकाल नहीं सकता है। और अभी एलन मस्क देखो,
इनोवेशन की ही बात करके कहाँ पहुंच गए। 2 दिन पहले ही some 2.5 lakh crore he made in a day. Yeah. Correct. Right. Yeah. So with this, thank you so much, Yeah. everyone. Have a nice time. Thank you, sir. Thank Thank you. you. That's very Bye-bye. motivating. Bye. Thank you.